gathered here for listening experience of our athletes. This is an experience sharing session of Team Bhopal. Here we'll meet Nandan Narula and Zamran Hussain ji. First of all, we should know who both of them are. Firstly they work as a team, and Zamran ji, he is actually we'll listen to his journey of a 90 kg couch potato becoming an active athlete. He used sports to not only overcome his despair but also to view life more positively. Who would have thought he would go on to become an Ironman after winning best ultra cycling events in India? And today we will listen to his journey along with Nandanji. And regarding Nandanji, we will listen to his struggle of a top chartered accountant to balance his love of riding with his career. Who would have imagined that he frail looking bookworm would develop into a powerful athlete, dominate India's premier ultra cycling competitions, and eventually become an Ironman. I would like to welcome both of them as a team. Thank you so much, ma'am. So here I am in front of you, a frail-looking bookworm, as said by Bharti ma'am. Just give us a second. So she's already introduced us. I am Nandan Narula, a chartered accountant by profession, and he is Zamran Hussain, director of a private school here in Bhopal. And we, along with our crew member, our teammates, our mentors, together constitute Team Bhopal. It's not just the two of us who constitute Team Bhopal. There are approximately 15 people around in Bhopal and all across India who have helped us in past 1.5 years to achieve our dreams, to help us improve ourselves in the field of cycling. So together we all constitute Team Bhopal. So today, in the next few minutes, maybe 40 to 60 minutes, we'll be taking you through our journey of 1.5 years. When we started seriously focusing on ultra cycling as a team of two in relay format. But we'll specifically talk about our last race, which was the Ultra Spice race. So, this हम लोग थोड़ा राकेश ओम प्रकाश मेहरा की मूवी जैसे चलेंगे, थोड़ा आगे, फिर थोड़ा फ्लैशबैक, फिर थोड़ा आगे, फिर थोड़ा पीछे, इस तरीके से चलेंगे. हम लोग राष्ट्रीय प्रोडक्शन की मूवी जैसे नहीं चलेंगे कि एक ही दिशा में लीनियर मैनर में चलते जाएं. तो पहले बताता हूँ कि अभी हुआ क्या था, एक महीने पहले क्या हुआ था. सो एक महीने पहले बोथ ऑफ अस वेंट फॉर अ रेस, दैट इज द अल्ट्रा स्पाइस रेस. इसके कुछ की स्टैटिस्टिक्स आपके सामने हैं. टिल नाउ जब ये रेस हुई थी तब वो इंडिया की सबसे लंबी अल्ट्रा साइकिलिंग रेस थी, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1780 किलोमीटर्स. This race for us, because we were a relay team, so we were penalized for being a relay team क्योंकि हम 2 लोग थे. So we had a shorter cutoff of only 97.5 hours, and this was the 6th edition of the race. This race starts from Goa, Bogmalo beach. उसके बाद ये कारवार होते हुए कर्नाटका में एंटर करती है. Major part of the race goes through Karnataka. Then it goes to Kerala, तमिलनाडु, केरला बॉर्डर पे चलते हुए वापस ऊटी से यू टर्न लेके कुर्ग, मडिकेरी, जो आप लोगों ने सुंदर सुंदर हिल स्टेशन सुने, वहाँ की भयानक स्थितियों को हम लोग देखते हुए वापस गोवा पहुँचे और हम लोग ने कट ऑफ टाइम के अंदर ये रेस फिनिश करी. So this was the last race that we did. A few statistics, a few metrics are there in front of you. The broad route India में हम लोग कहाँ से कहाँ गए थे. This was a U-turn point somewhere near Ooty. In fact, exactly in Ooty. These are a few statistics, and this was the elevation graph. The worst or the best part about this race is elevation. लगभग 24,000 मीटर्स का एलिवेशन गेन है. तो जो नॉन साइक्लिस्ट है उनको मैं बताऊं एलिवेशन गेन कैसे कैलकुलेट होता है. यू गो लाइक दिस इज एलिवेशन गेन.
फिर आप नीचे आते हैं तो वो गेन नहीं होता, फिर जब आप ऊपर जाते हैं तो वो प्लस होता जाता है। तो इस तरीके से जो टोटल क्लाइंबिंग थी दैट वाज समवेयर बिटवीन 23 टू 24,000 मीटर्स। और मैंने जामरान को मना किया था अपने को डराना नहीं है, फिर भी उसने 3x एवरेस्ट वहां पे लिखा है। तो वो उसने बोला कि नहीं, वो पर्सपेक्टिव बताना जरूरी है कि हम एवरेस्ट 3 बार चढ़े थे समुद्र तल से लगभग, तो इसलिए उसने किया। मैंने मना किया था कि आज डराया नहीं जाएगा किसी को, अपन बहुत प्यार से आराम से बात करेंगे, बट स्टिल जामरान इज जामरान। सो ओवर टू जामरान नाउ। ये आपको हमारी थोड़ी पीछे की जर्नी से अब लेके जाएगा। अब हम फ्लैशबैक में चल रहे हैं 1.5 years बैक। Thank you Nandan, thank you everyone present here. Thanks for the great introduction. Here I am 90 kg guy in front of you. So अभी नंदन भाई ने आपको जो बताया वो अल्ट्रा स्पाइस का ब्रीफ बताया। मैं आपको पीछे ले जा रहा हूँ कि हमारी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई थी। एक्चुअली हम सभी लोग लॉकडाउन में जब घर के अंदर थे और तो हम लोग वर्कआउट्स के लिए, क्योंकि हम थोड़ा करीब रहते थे तो पास में वर्कआउट करना हमने शुरू किया। तो तब मैं और नंदन भाई साथ में वर्कआउट स्टार्ट शुरू किया। धीरे धीरे करते रहे। तब तक कोई डिसीजन नहीं था, कोई डिसाइड नहीं था कि कोई रेस करना है, बट सिर्फ वर्कआउट करते थे क्योंकि वो पसंद था करना। फिर पता चला धीरे कि हम लोगों की आदतें मिलती हैं, हम लोग साथ सुबह जैसे उठने की आदत है दोनों की है, सेम न्यूट्रिशन, अदर बहुत सारे स्टेटिस्टिक्स जो है वो मैच करते हैं। हमने सबसे पहले रजिस्टर किया था आयरन मैन के लिए, बट वो आयरन मैन जो है वो लॉकडाउन की वजह से पोस्टपोन होता रहा। फिर पता चल रहा था कि अब कुछ करने को नहीं हो रहा, तो नंदन भाई फिर एक ऐसे तूफानी और डरावने आइडिया के साथ आए। तो लिटरली जब इन्होंने ये आइडिया दिया कि हम लोग डेक्कन क्लिफहैंगर रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, तो मुझे नहीं पता था कि डेक्कन क्लिफहैंगर एक ऐसी रेस है जो अल्ट्रा साइकिलिंग इंडिया की टॉप रेसेस में है। तो मैंने इनसे बोला कि क्यों डरा रहे हो भाई, क्यों, अपने बस का तो नहीं है, अपन ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। फिर भी जब एक टीम बन के काम करते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। हम लोगों ने टीम भोपाल बनाई। अकेले जब दो लोग मिलते हैं तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, बशर्ते कि सब वो एक ही गोल को अचीव करना चाहेंगे। तो डेक्कन क्लिफहैंगर हमारे लिए सबसे टफ रेस भी थी, और देखें आप तो सबसे इजी रेस भी थी, क्योंकि ये 646 किलोमीटर की रेस है। इसमें जो एलिवेशन गेन था वो 6000 मीटर था। अभी नंदन भाई ने बताया तो कि वो एलिवेशन गेन किस तरह कैलकुलेट होता है। जब 6000 मीटर एलिवेशन गेन हमने देखा तो हमारे लिए ये था कि ये तो बहुत ही टफ चीज़ है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इसमें बहुत से लोग ऐसे जो साइकिलिस्ट हैं और वो एलिवेशन का जब नाम सुनते हैं तो बोलते हैं कि हमें राइड नहीं करना। तो 6000 मीटर एलिवेशन हमें लग रहा था कि इतना टफ, यानी एक बार माउंट एवरेस्ट जितना चढ़ने के करीब। ठीक है, प्रैक्टिस करना थी, तैयारी करी, स्टार्ट करा। सबसे इम्पोर्टेंट था उस पॉइंट पे अपने मन में से उस डर को निकालना कि एलिवेशन का जो डर है हमारे अंदर कि ये हम कैसे ऊपर चढ़ाएंगे, हमारे पैर कैसे सिंक होंगे, कैसे काम करेंगे। तो उसके लिए सबसे जो टफ, भोपाल में रहते हैं हम, तो हमने भोपाल के आसपास की जगहों को आइडेंटिफाई करा और उसको आगे हम बताएंगे उसको अगली स्लाइड्स में कैसे किया। फिलहाल मैं डीसी का शॉर्ट में बताता हूँ। डेक्कन क्लिफहैंगर मेरे लिए, हमारे लिए सबसे टफ रेस थी और सबसे इजी रेस थी। वो इसलिए क्योंकि डिस्टेंस वाइज छोटी थी, और टफ इसलिए थी क्योंकि वो हमारी पहली रेस थी। उसकी हमारी तैयारी के लिए हमें क्रू को इकट्ठा करना और बहुत सारी चीज़ें करना पड़ी। वहाँ का वेदर जो था वो बहुत टफ हुआ। पिछले 8 एडिशन में कभी वहाँ बारिश नहीं हुई थी, बट डेक्कन क्लिफहैंगर में 8 आवर्स कंटिन्यू बारिश हुई, उसमें राइड करना। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे। क्रू का सिंक होना हमारे साथ, वो भी बहुत टफ था हमारे लिए, बट वहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा। और उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट अगली रेस की फिर तैयारी शुरू करी। जब फर्स्ट रेस हमारी डेक्कन क्लिफहैंगर हुई, उसका रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड था। अनएक्सपेक्टेड ऐसे था कि हमने पोडियम फिनिश करा। टीम ऑफ 2 कैटेगरी के अलावा हमने टीम ऑफ 3 से कम्पीट करा, क्योंकि टीम ऑफ 2 को तो हमारी ट्रेनिंग थी, हमें उस पर भरोसा था, उसके हिसाब से हम जल्दी कवर कर गए थे। बट टीम ऑफ 3 जो थी वो हमसे काफ़ी फास्ट थी, तो फिर हमने उसको चैलेंज लिया और उनके साथ कम्पीट किया। तो टीम ऑफ 3 के साथ जो कंपटीशन हुआ वो तकरीबन 300 किलोमीटर तक चलता रहा। उस 300 किलोमीटर के अंदर वो जो कंपटीशन हुआ, तो
तो जब वहाँ से हम सब कुछ सीख के आए तब उसके बाद हमने डिसाइड किया कि अब आगे एक और रेस है वो करते हैं। हम स्टेप वाइज आगे बढ़ रहे थे। पहली रेस थी हमारी 6000 मीटर एलिवेशन गेम की, इसमें था 10,000 मीटर एलिवेशन गेम, और इसका सबसे चैलेंजिंग पार्ट था कि हमें जाके एक हाई एल्टीट्यूड पर रेस करना थी। ये वर्ल्ड की सबसे ऊंचाई पे, मतलब सबसे हाई एल्टीट्यूड पे होने वाली रेस है। इससे ऊंचे एल्टीट्यूड पे रेस नहीं होती अभी। तो वहाँ जाके एक्लिमेटाइज करना, क्योंकि पहाड़ी में ऑक्सीजन कम है और आपको वहाँ परफॉर्म करना है, सिर्फ आपको घूमने नहीं जाना है, आपको वहाँ एफर्ट देना है। तो उसके लिए 9 to 10 डेज हम लोग पहले वहाँ पहुँचे। वहाँ जाके हमने धीरे धीरे अपने आप को एक्लिमेटाइज करा, थोड़ी सी ट्रेनिंग स्टार्ट करी, और उसके बाद फिर हमने इसमें पार्टिसिपेट किया। ये सबसे अच्छी रेस थी हमारे लिए, क्योंकि हमारी टीम जो थी, अब हम लोग समझ चुके थे कि कैसे हम टीम के साथ अच्छे से काम कर सकते हैं। सीखा था क्योंकि हमने अपनी लास्ट रेस से, तो इसलिए इसमें हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही। हम लोग सब साथ रहे, 9 दिन हॉस्टल जैसे रहते थे, खाते पीते थे, तो एक अच्छी बॉन्डिंग के साथ एक बहुत ही बेहतरीन रेस परफॉर्म करी, जो बहुत ही यादगार है। इसे हमने 28 आवर्स में फिनिश किया, और उसमें भी हम फर्स्ट आए, और दूसरी जो टीम्स थी या जितने और पार्टिसिपेंट्स थे वो काफ़ी हमारे बाद रहे, क्योंकि हमारी टीम ने बहुत अच्छा हमारा सपोर्ट किया। मतलब अभी आपको जब ये आगे स्लाइड्स पढ़ेंगी तो पता चलेगा कि टीम वर्क से ही रेसेस जीती जाती है, अकेले किसी की परफॉर्मेंस से नहीं जीती जाती है। ये तो 2 रेसेस हम लोगों ने करी रिले फॉर्मेट में एज अ टीम। इसके बीच में और इसके बाद में भी हम लोगों ने अपने आप को कुछ जगह पे इंडिविजुअली चैलेंज करा। जैसे जब हम कोई अल्ट्रा साइकिलिंग रेस की तैयारी करते हैं तो जो हमारा ट्रेनिंग वॉल्यूम होता है दैट इज मेनली साइकिलिंग सेंट्रिक, बट व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रायथलॉन तो हमारा जो ट्रेनिंग वॉल्यूम होता है दैट गेट्स डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, स्विमिंग आल्सो, साइकिलिंग आल्सो एंड रनिंग आल्सो। सो इन बिटवीन डेक्कन क्लिफहैंगर एंड ग्रेट हिमालयन अल्ट्रा हम लोग का जो पुराना चैलेंज था, जैसे जामरान ने बताया, जो हमने टेकअप कर लिया था विच वाज आयरन मैन, वो भी अचानक से निकल के आ गया। वेबसाइट पे अनाउंस हो गया कि आयरन मैन इंडिया में हो रहा है। सो 2021 अगस्त में ग्रेट हिमालयन अल्ट्रा थी, एंड 2022 नवंबर में ही हमारा आयरन मैन भी हो रहा था। सो वी हैड टू शिफ्ट गियर्स ऑन एंड ऑफ। तो हम लोगों ने अराउंड 2022 में डीसी कंप्लीट करने के बाद वापस से अपनी सीरियस ट्रायथलॉन ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, जिसको हमने फिर से थोड़ा सा ब्रेक दे दिया ताकि हम लोग ग्रेट हिमालयन अल्ट्रा पे फोकस कर सके। ट्रायथलॉन की हम बात करें तो ऑल्दो इट वाज नॉट अ रिले फॉर्मेट, हम दोनों ने इंडिविजुअली करा, बट हमने जो गियर शिफ्ट करी वो हमारे लिए थोड़ा सा फिजिकली और मेंटली चैलेंजिंग था, क्योंकि बोथ ऑफ अस वर नॉन स्विमर्स, वी वर लर्निंग स्विमिंग। तो स्विमिंग सीखना, साथ में साइकिलिंग का ट्रेनिंग वॉल्यूम मेंटेन करना, रनिंग भी करते रहना, और सही टाइम पे पीक आउट करना, टेपर करना, फिर से ट्रेनिंग रिस्टार्ट करना, सो दैट वर्कड एज अ चैलेंज। And in between those 2 races and in between Ironman, between those 2 races, हमने एक और चैलेंज भी टेकअप कर लिया, जो हमारा और ज्यादा पुराना सपना था जब हम इस साइकिलिंग ग्रुप द न्यू गोल्फर से जुड़े, कि हम लोग को SR बनना है। सो फॉर द नॉन साइक्लिस्ट, SR इज अ पर्सन जो एक ही ऑडेक्स कैलेंडर ईयर में 200, 300, 400 और 600 किलोमीटर राइड खत्म करता है। सो आफ्टर डेक्कन क्लिफहैंगर वी वर प्रिविलेज्ड इनफ, भोपाल में जो कैलेंडर था उसमें ये चारों राइड शेड्यूल्ड थी। So after Deccan Cliffhanger, we did our 200, 300 and 400. But 2022 January, February, again another wave of COVID came. Because of that, there were a few restrictions. और हमारी जो 600 वाली राइड थी, that got postponed. और वो ultimately हुई हमारे हिमालयन अल्ट्रा और आयरन मैन के बीच में। So August we were doing Great Himalayan Ultra. September we had to do 600 to complete our SR. एंड नवंबर में आयरन मैन था। तो वो 3 से 4 महीने जो थे उसमें बस हम गियर्स ही बदलते रहे, कभी साइकिलिंग कर रहे हैं, कभी रनिंग, कभी स्विमिंग, आराम कर रहे हैं तो एक गिल्ट आ रहा है, आराम क्यों कर रहे हैं, हमें तो ट्रेनिंग करनी है, ट्रेनिंग करते हैं तो थक जाते हैं, लगता है ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं, आराम करना चाहिए। तो वो दोनों अल्ट्रा रेसेस और उनके साथ जो ट्रायथलॉन और SR का जो मिक्सचर था, दैट वाज बिट ट्रिकी, बट थैंकफुली हम लोगों ने उसे क्रॉस किया। अब हम लोग का जो ट्रेनिंग वॉल्यूम था उसके ऊपर थोड़ा सा जामरान प्रकाश डालेंगे। जैसे अभी नंदन भाई ने बताया कि हमको हमारी ट्रेनिंग स्विच करना पड़ती है। अब ट्रेनिंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। किसी भी चीज़ को आप कंप्लीट करना चाहते हैं अगर अच्छे से, तो आप उसके लिए ट्रेन करें।
हमने भी वही किया, हमने सहारा लिया हमारे कोच का जो पुणे में है, चैतन्य बेलाल। उनसे हमने ट्रेनिंग स्टार्ट करी, मतलब डेक्कन क्लिफहैंगर से हमने स्टार्ट करी। जब हमने डिसाइड किया कि हम कोई रेस कर रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ करने जा रहे हैं जो अभी तक हमने नहीं करी, तो हमें ऑब्वियसली किसी गाइडेंस की ज़रूरत थी। तो हमारी कोच ने उसमें बहुत मदद करी। ट्रेनिंग में हमारा डेली रूटीन जो था वो बहुत मायने रखता है, जिसमें हमें टाइम से सोना होता है, टाइम से उठना, खाना पीना, अपने वर्कआउट्स को, अपनी फैमिली को और अपने वर्क्स को बैलेंस करना ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि आपको सुबह उठना है, 5 बजे से अपने वर्कआउट्स करना है, फिर 9 बजे आपको ऑफिस जाना है, फिर शाम को आना है, फिर फैमिली को टाइम देना है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ होता है, और वो होता भी है, और वही उसकी कीमत होती है जब आप कुछ करते हैं। तो हम सुबह उठते थे, टाइम से वर्कआउट करते थे, हम लोग साथ वर्कआउट करते थे, कर रहे हैं पिछले 3-4 साल से, और एक दूसरे से सीख रहे हैं और एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं सोचा नंदन भाई ने कि ज़मरान ऐसा कर रहे हैं, या मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि नंदन भाई ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक टीम बन गए। तो टीम का मतलब होता है कि 2 मिलके फिर एक ही, यानी सबका एक ही टारगेट होता है। तो हम उसी तरह काम करते रहे, और जब तक हम ऐसे कर रहे हैं तब तक हमारा रिजल्ट भी आता रहा। मील्स, बहुत सारी चीज़ें आपको पता है, मील्स, टाइमिंग, न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम लोगों ने फॉलो किया। उसके बाद वीकली वर्कआउट माइलेज और आवर्स जो है, इसमें 17 to 18 आवर्स हम ट्रेनिंग करते हैं हफ्ते में, जिसमें हमारे वो, अगर वीक की बात करें तो क्योंकि हम ट्रायथलॉन भी कर रहे हैं बीच में, तो 3 आवर्स की रनिंग, 3 डेज रनिंग, 3 डेज साइकिलिंग, 3 डेज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, 3 to 4 डेज स्विमिंग। तो ये सब हम चीज़ें 6 दिन में कैसे करते हैं, वो या तो सुबह शाम वर्कआउट को डिवाइड करते हैं, या सुबह इकट्ठा के 4 घंटे तक लगातार वर्कआउट करते हैं, देन उसके बाद काम करते हैं। और सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप साइकिलिंग इंप्रूव करना चाहते हैं, आप रनिंग इंप्रूव करना चाहते हैं, आप स्विमिंग इंप्रूव करना चाहते हैं, या आप कोई और स्पोर्ट्स में जैसे आप इंप्रूव करना चाहते हैं, तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, साथ में क्रॉस ट्रेनिंग। इस बीच जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे जो इवेंट्स हैं उसकी तैयारी में ऑब्वियसली रिस्क भी है, क्योंकि एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो बाहर होता है। तो मैंने और नंदन भाई दोनों ने इन चीज़ों को भी फेस किया, ओवरकम किया, और फिर रिजल्ट आया। जैसे हमारी कौन सी रेस, आयरनमैन से जस्ट पहले नंदन भाई हॉस्पिटलाइज रहे 7-8 दिन, काफ़ी तबीयत खराब हुई। इवन ये सिचुएशन आ गई कि अब नंदन भाई इवेंट में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ऐसा हो गया। बट फिर वही बात आती है कि टीम वर्क जहाँ इंपॉर्टेंट है तो मिलके काम करते हैं, एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं, एक दूसरे को पुश करते हैं, वही हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं। अगर ये डाउन है तो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा इसको साथ लेके चलूँ, या मैं डाउन हूँ तो ये साथ लेके चलते हैं, इसी तरह आगे बढ़ते हैं। और जस्ट रेस से पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, जो मतलब मैंने खास करके फैमिली वालों को नहीं बताया कि अगर वो पता चलता तो दिक्कत होती, तो उसे मैंने छुपाया थोड़ा सा। वो एक्सीडेंट हुआ मेरा एक डाउन हिल पे, जो अप्रॉक्स मेरी 50 की और स्पीड होगी, उसमें मैं क्रैश हुआ। बट थैंक्स टू हेलमेट, मतलब वो हेलमेट तो डिस्ट्रॉय हो गया, बट मैं थोड़ा बच गया। फिर थोड़ा सा टाइम लगा, और उसके बाद वापस रेस पे ध्यान दिया। किस्मत अच्छी थी, मैंने उठ के सब देखा तो मेरे वो वाले सारे पार्ट सही काम कर रहे थे जो साइकिल में यूज़ होते थे। मैं रनिंग नहीं कर सकता था, बट मैं साइकिलिंग करता था, स्विमिंग भी नहीं कर सकता था, मेरे शोल्डर में लगी थी, बट मैं साइकिलिंग कर पा रहा था। तो बस मैंने चेक किया मैं साइकिलिंग कर पा रहा हूँ, मैंने कहा ठीक है ये काम हो जाएगा ऐसे। और बहुत कुछ सीखा, और उसके आगे मुझे हाँ, जैसे कि आप ट्रेनिंग से, क्लाइंबिंग ट्रेनिंग, मैं भी आपको यही बता रहा था कि एलिवेशन जो है वो सबसे टफ पार्ट होता है रेस का। तो हम लोग एलिवेशन प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग ने फाइंड आउट करा कि भोपाल में सबसे टफ है मनवाड़ टेकरी या सनकनपुर, ये जो क्लाइंब है ये स्टीप क्लाइंब है। और कोलार और झोलियापुर का जो एरिया है वो रोलिंग सेक्शन है, वहाँ काफ़ी क्लाइंब्स आते हैं, डाउन आते हैं। तो रेसेस में एक्चुअली यही होता है, चाहे वो डेक्कन क्लिफहैंगर थी, या वो अल्ट्रा स्पाइस हो, या वो ग्रेट हिमालयन, डायरेक्ट यही होता है। इसका बड़ा फॉर्म होता है। अगर बात करी जाए मनवाड़ टेकरी की, तो उस पर हम ट्रेनिंग करते हैं ऊपर नीचे, तो इससे ज़्यादा टफ कुछ नहीं आ सकता। जो मैं आपको अभी स्टार्टिंग में बोल रहा था कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, अगर आप ग्रो करना चाहते हो
तो आपके मन से पहले फियर निकालना होता है। तो वो फियर हम लोग निकालते थे यहाँ पे जाके, टेकरी पे जाते थे, उसको जब नीचे से खड़े होकर देखते थे कि ये इतना ऊंचा है, तो लगता था कि हम इसको कैसे कर पाएंगे। बट फिर 1 रैप किया, फिर 2 रैप किए, फिर 5 रैप किए, धीरे 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 उसको इंक्रीज किया और अप टू 30 रेपिटेशंस तक गए कि हनुमान टेकरी की एक ही दिन में 30 रेपिटेशंस ऊपर नीचे साइकिल से करे, ये मैक्सिमम था। तो उसमें सीखा हमने काफ़ी, उसमें हमारा डर निकल चुका था। जब हम लोग जा रहे हैं, जब देख रहे हैं ना रेसेस कि उसमें 23,000 मीटर एलिवेशन गेन है या 10,000 मीटर एलिवेशन गेन है, तो मेन बात ये थी कि उसमें डर नहीं था, ये पता था कि कर लेंगे, हो सकता है स्लो करेंगे बट वो हो जाएगा नहीं। तो वो फियर जो है ना वो निकालना ज़रूरी होता है। आपको जो स्ट्रॉन्ग बनाता है वो एलिवेशन बनाता है साइकिलिंग में। इसलिए हम लोग शायद बार बार फोकस भी करते हैं। जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो ट्रेनिंग करते करते हमको और चाह कि इम्प्रूव करा जाए कौन से टैलेंट पे, तो देन पचमढ़ी और तामिया जैसी जगहें थी जहाँ पे हम ट्रेनिंग कर सकते थे। पचमढ़ी के भी हमने रैप्स लगाए थे कि पचमढ़ी 1 बार चढ़ाए, ठीक है 2 बार चढ़ाते, फिर 3 बार चढ़ाते लगातार, फिर 8-8, 10-10 घंटे प्रैक्टिस करते। उसमें आप जो देख रहे हैं ग्राफ, ये हमारे हार्ट रेट का ग्राफ है। जब हम ऊपर जा रहे हैं तो हार्ट हमारा रेट ऊपर जा रहा है, और जब हम नीचे आ रहे हैं तो वो नीचे आ रहा है। ये ट्रेनिंग का नतीजा आता है। जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो हमारा हार्ट रेट बिल्कुल सिंक हो जाता है हमारे एक्शन के साथ, ऊपर जाएंगे ऊपर जाएगा, नीचे जाएंगे नीचे जाएंगे, विद इन फ्यू सेकेंड्स काम करता है। ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। जब नंदन भाई एडमिट हुए थे, एक बड़ा अच्छा याद आ गया मुझे वाकया, तो मैं बता देता हूँ 2 सेकेंड। जब ये एडमिट हुए तो ये हॉस्पिटल हो सकते हैं, डॉक्टर्स भी होंगे बहुत सारे, तो जब ये एडमिट हुए तो इनका हार्ट रेट जो है, या हम लोगों का या और भी एथलीट्स यहाँ पे हैं, उनका जो नॉर्मल हार्ट रेट होता है वो 40, 45, 48 ऐसा मतलब आता है जब वो नॉर्मल रेस्टिंग में होते हैं। तो जब ये पहुँचे और डॉक्टर ने देखा तो इनका 40 आ रहा है, तो बोलते तो गए इसकी तो बहुत ही बुरी हालत है, इसकी तो हार्ट सही से वर्क ही नहीं कर रहा है। उनको प्रूफ करना पड़ा, समझाना पड़ा। मैं भी पहुंच गया, इनकी वाइफ थी, भाभी जी थी, मैं पहुंच गया, शायद डॉक्टर प्रिया मैम ने भी फ़ोन पे बात करी, समझाया कि नहीं उसका है ऐसा। वो मानने को तैयार नहीं कि अरे इसकी तो हालत बहुत ख़राब है अब पता नहीं क्या होगा। बट इनको साल भर का डेटा इन्होंने निकाला, अपने गार्मेंट में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, वो दिखाया डॉक्टर्स को कि भाई साहब हम लोग जब सोते हैं तो 35 भी पहुँच जाता है हम लोगों का। तो वो हार्ट एक्चुअली अच्छा काम करने लगता है करके। ऐसे मतलब ये कि आप 35 टाइम्स जब वो पंप कर रहे हैं, 40 टाइम्स पंप कर रहे हैं, तो वो उतना काम कर रहा है जब वो 70-80 में करता है। तो ये ट्रेनिंग का फ़ायदा भी है। इसलिए हार्ट रेट का जो डाला है, ये ऊपर नीचे जो दिख रहा है, ये ऐसे सेकंड्स में हो जाते हैं। बाकी एक स्टैट्यूटरी डिस्क्लोजर, वो जामना ने 7 दिन बोला था, मैं एक्चुअली बहुत कम टाइम रहा था। बाकी वो हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम एक्चुअली सेटल नहीं हो रहा था, इसलिए आई हैड टू स्टे। तो कोई रिकॉर्ड नहीं करेगा, बीइंग इन अ हॉस्पिटल आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस, तो इसको डिलीट कर देना। चलो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ट्रेनिंग का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, हम लोग इंडिविजुअली तो ट्रेन करते रहते हैं कि इंडोर ट्रेनिंग भी है हमारे पास अंदर एक स्मार्ट ट्रेनर है, स्विफ्ट पे करते रहते हैं। आउटडोर ट्रेनिंग जामरान भाई ने भी आपको बहुत अच्छे से बताया, आउटडोर ट्रेनिंग किस तरीके से कोशिश करते हैं हम लोग सिमुलेट करने की, बट वो हमारा इंडिविजुअल सिमुलेशन हो गया। व्हेन वी टॉक अबाउट अल्ट्रा साइक्लिंग इवेंट्स, जिसमें हम लोग को एज अ रिले परफॉर्म करना है, रिले टीम, एंड वी हैव अ क्रू आल्सो, सो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हम लोग रेस डे पे सरप्राइज ना हो। एवरीथिंग शुड बी प्लान, एटलीस्ट हम कोशिश तो कर सकें, हम फोर्स ही कर सकें कि वहाँ पे क्या क्या हो सकता है। फॉर दैट बिफोर एवरी रेस वी ट्राई टू अरेंज सम काइंड ऑफ सिमुलेशन राइड्स। बाय सिमुलेशन आई मीन कि हम कोशिश करते हैं विजुअलाइज करें कि वहाँ पे क्या वेदर होगा, क्या टेम्परेचर, कैसी कंडीशंस होंगी, कितना एलिवेशन होगा, और हम लोग को वहाँ पे क्रू की कार साथ में रहती है। अभी आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको कुछ क्रू व्हीकल्स और क्रूइंग के बारे में पता चलेगा, तो क्रू साथ में रहता है। सो बाय सिमुलेशन राइड आई मीन टू से हमारी रेट्स 600 किलोमीटर्स के, वी ट्राई टू ब्रेक इट डाउन इनटू से अप्रोक्सीमेटली 200 किलोमीटर्स। अब वो 200 किलोमीटर में हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा दिन का भी एक्सपीरियंस लें, थोड़ा हम रात का भी एक्सपीरियंस लें, थोड़ा बारिश का एक्सपीरियंस लें, थोड़ा धूप का, थोड़ा सर्दी का एक्सपीरियंस लें। प्लस जो क्रू होता है, क्रू को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एग्जीक्यूट कैसे करनी है वो पता होना बहुत जरूरी है। सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई क्रू मेंबर है, उसको मैंने ऐसे ही बोल दिया कि तुझे रूट का ध्यान रखना है, नेविगेशन का ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो रेसेस होती हैं इनमें कहीं पे मार्कर्स नहीं लगे होते हैं, आपको खुद इनको नेविगेट करना होता है, आपको जीपीएक्स फाइल और प्रिंट आउट दे दिए जाते हैं, सो यू हैव टू नेविगेट योर ओन रेस। तो माय क्रू शुड नो, आई शुड नो कि हमें कहाँ जाना है और नेविगेशन करना कैसे है।
उसके लिए ऐप्स है, हमें वो ऐप भी चलानी आनी चाहिए। तो वो ऐप्स को चलाने की तैयारी हम लोग सिमुलेशन राइड में करते हैं। राइडर को पानी की बोतल कैसे देनी है, हाउ टू डू हैंड ऑफ्स, खाना कैसे देना है राइडर को, राइडर गाड़ी में आके बैठेगा तो कहाँ बैठेगा, शूज कहाँ उतार के रखेगा, सॉक्स कब चेंज करेगा, जर्सी कब चेंज करनी है, खाना रखा कैसे जाएगा, पानी को ठंडा कैसे रखना है। वेरी बेसिक सिंपल थिंग्स जो हम लोग वैसे तो खुद ही करते रहते हैं, बट व्हेन यू टॉक अबाउट 600 किलोमीटर्स और 1700 किलोमीटर्स, ये छोटे छोटे जो पेन पॉइंट्स हैं कभी कभी ये रेस कॉज कर सकते हैं। सो इसीलिए हम लोग ये सिमुलेशन राइड्स प्लान करते हैं, जिसमें हम लोग मेनली क्रू रोल्स को डिसाइड करते हैं और अलग अलग वेदर कंडीशन, अलग अलग टाइम ऑफ द डे में रेस को करते हैं। बिकॉज आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, मैं जैसे ही सनसेट होता है तो मेरी बॉडी सेट होने लगती है और जैसे जैसे चंद्रमा आता जाता है मुझे नींद आने लगती है और सनराइज पे मैं एक्टिव हो जाता हूँ। तो रात को मुझे साइकिलिंग करने में बहुत ज्यादा कष्ट होता है। आई हैव हार्डली डन 2-3 इंडोर राइड्स आफ्टर सनसेट, आई हैव हार्डली डन 4-5 आउटडोर राइड्स आफ्टर सनसेट, वो भी एसआर करते टाइम करी होंगी या अल्ट्रा रेसेस के टाइम पे करी होंगी, अदरवाइज मैं रात को राइड नहीं करता हूँ। तो मेरे लिए अपनी बॉडी को एडजस्ट करना रात में बहुत जरूरी है। दीज सिमुलेशन राइड्स हेल्प मी। सिमिलरली हमारी जो पूरी टीम है उसको सिमुलेशन राइड्स हेल्प करती हैं कि वो अपनी बॉडी साइकिल को एडजस्ट कर सके। रात को देर तक जगना, सुबह जल्दी उठना। हमारे क्रू में कुछ लोग हैं जो सुबह 11 बजे सोते हैं, तो वो कैसे सुबह 5 बजे उठेंगे जब वो सोएंगे सुबह 11 बजे, तो सोने से पहले कोई उठेगा कैसे। तो ये सब चीजें प्लान करना हम लोग को काफी हेल्प करता है। अब ये ट्रेनिंग के बाद में अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है हम लोग की अल्ट्रा साइकिल में, दैट इज क्रू। क्रू के बिना टीम भोपाल अधूरी है। ये कुछ ग्लिम्पसेस है क्रू के। ड्यूरिंग आवर डेक्कन क्लिफहैंगर वी हैड रामा सर एज आवर क्रू चीफ। सर इज नॉट हियर, उन्हें मैसेज किया इज बिजी। जसदेव सर वाज देयर, यश वाज देयर, गुड्डू भैया वाज देयर, अर्चित सर वाज देयर एंड दानियल वाज देयर। उसके बाद हमारी जो ग्रेट हिमालयन अल्ट्रा थी उसमें भोपाल से हमारे पास शुभेन थे, अंकुर भाई थे, यश वाज आवर क्रू चीफ और वरुण भाई यहाँ पे खड़े, ही वाज आल्सो आवर क्रू मेंबर। और वहां पे हमारा एक ड्राइवर था विच वाज एज गुड एज आवर क्रू मेंबर लेह में। उसके बाद अभी जो हम लोग गए थे जो लास्ट रेस हुई अल्ट्रा स्पाइस, उसमें हमारे पास भोपाल से तो क्रू मेंबर्स थे, यश था, दानियल था, अचिन है, ही इज नॉट हियर, वो भी एक असाइनमेंट हुई बाहर गया हुआ है। उसके साथ रवि भाई थे और पुणे से भी हमारे पास 2 क्रू मेंबर्स थे। सो क्रू ने ही हमेशा हमारी टीम को जो है जोड़ के रखा है और हम सब लोग जो रेसेस को कंप्लीट कर पाए वो क्रू के कर पाए। क्रू से एफिशिएंसी बढ़ती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप 600 किलोमीटर अकेले नहीं चला सकते, 1700 किलोमीटर अकेले नहीं चला सकते, बिल्कुल संभव है, बट क्रू आपकी एफिशिएंसी बढ़ाता है। प्रैक्टिकली हमने जो तीनों रेसेस करी हैं उसमें हमारा जो ऑफ सैडल टाइम रहा है, डेक्कन क्लिफहैंगर में इट वाज नॉट मोर देन 10-15 मिनट्स, हिमालयन में इट वाज नॉट मोर देन 10-15 मिनट्स। ऑफ सैडल टाइम मतलब जब हमारी टीम साइकिल नहीं कर रही है, या तो मैं साइकिल कर रहा हूँ या जामरान साइकिल कर रहा है, टीम इज गोइंग अहेड, वो आगे बढ़ती जा रही है। और अल्ट्रा स्पाइस में मैं बोलूंगा हमारा ऑफ सैडल टाइम, ऑल्दो वी हैवंट कैलकुलेटेड येट, बट अराउंड 1 to 1.5 आवर रहा होगा ऑफ सैडल टाइम। सो वो 96 आवर्स में सिर्फ 1.5 घंटे टीम भोपाल ने साइकिल नहीं चलाई, बाकी टीम भोपाल साइकिल चलाती रही। तो इसलिए वो साइकिल चलाने में क्रू का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो क्रू का जो प्रोसेस है, हम दोनों के तो तार मिल गए, जामरान ने बता दिया, हम वहीं रहते थे, साथ उठे साथ बैठे साथ सोए, हो गया, तार मिल गए। क्रू के साथ तार कैसे जोड़े, ये बड़ा टफ काम होता है भाई। कोई बंदा मेरे साथ पिछले रेस में क्रू था, बट इस बार हो सकता है ड्यू टू एनी फैमिली कमिटमेंट, प्रोफेशनल कमिटमेंट, हेल्थ इश्यूज, वो हमारे साथ क्रू में नहीं आ पा रहे। सो एवरी टाइम वी रिटेन 50% ऑफ आवर क्रू, बट वी ऑल्सो लुक्ड फॉर 50% न्यू क्रू मेंबर्स, विच वॉज ऑलवेज चैलेंजिंग। सो कुछ पैरामीटर्स जो हम लोग हमेशा बात किया करते थे, हमने उसको डॉक्यूमेंट पहली बार करा कि कौन से पैरामीटर्स में हम लोग क्रू सिलेक्ट करते हैं। तो थोड़ा सा विश्वास, दैट इज रिलायबिलिटी, कमिटमेंट टुवर्ड्स द कॉमन गोल कि हमें रेस करनी है और हमें रेस जीतनी है, ठीक है। एक बार हिमालयन अल्ट्रा में यश था, यश सो रहा था कार में, मैं साइकिल चला रहा था, बहुत मेहनत कर रहा था, और अंकुर भाई बहुत मेहनत कर रहे थे, वो कार चला रहे थे, और शुभेन भाई जो भी यहाँ पे नहीं है और शायद इंस्टाग्राम पे जो सुन रहे हैं वो भी सो रहे थे। और हमारी बात हुई थी कि वो 1 घंटा सोएंगे, लेकिन उनको सोते हुए 1.5 घंटा हो गया था। तो मैंने साइकिल चलानी छोड़ दी, मैं कार के आगे खड़ा हो गया, मैंने कांच पे नॉक किया, नॉक नहीं किया, जोर से हाथ मारा। कार भी मेरी थी लेकिन मुझे कोई दुख नहीं हुआ जोर से मारने पे कार पे। मैंने जोर से कार पे मारा और मैंने बोला उठो, रेस है, बीआरएम नहीं चल रही है, उठो, हम लोग यहाँ पे रेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसके बाद ये बेचारे उठ गए। तो थोड़ा सा मैं कभी कभी हार्ड साउंड करता हूँ, बट हम इन पैरामीटर्स, कमिटमेंट टुवर्ड्स कॉमन गोल, नॉलेज अबाउट सम फील्ड,
फॉर एग्जाम्पल वी नीड अ क्रू मेंबर जिसको बाइक मैकेनिक्स के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है. वी नीड समवन हु इज गुड एट फिजियोथेरेपी. वी नीड समवन हु इज गुड एट फूड और न्यूट्रिशन. और हमें एक्सीलेंट नहीं चाहिए, थोड़ा सा अगर इंटरेस्ट है, विलिंगनेस टू लर्न, उसको हम एक फ्रेज में अगर सम अप करें, इंटरेस्ट होना चाहिए. क्योंकि मुझे भी सब कुछ नहीं आता, मुझे कुछ भी नहीं आता. सर्स के एक्सपीरियंस है, उनसे हम लोग हेल्प ले सकते हैं. हम लोग का पास रेसिंग का एक्सपीरियंस है, तो अगर इच्छा शक्ति है सीखने की, तो हम सब लोगों ने नई नई चीजें सीखी हैं. तो जिस क्रू मेंबर में लगता है कि शायद इच्छा शक्ति नहीं है सीखने की, उसको भी हम लोग फिर अपने क्रू में रखना नहीं चाहते. और एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है फॉर द टीम टू सर्वाइव टिल द एंड ऑफ द रेस, दैट इज आवर इंटरपर्सनल स्किल्स. मुझे कुछ आता है या नहीं आता, मुझे साइकिलिंग के बारे में कुछ पता है नहीं पता, वो इतना मैटर नहीं करता. लेकिन मेरा मेरे बाकी क्रू मेंबर्स के साथ व्यवहार कैसा है, उनका मेरे साथ व्यवहार और हम सबका आपस में व्यवहार, एक दूसरे की आंखों में देख के उनके कष्ट को समझ लेना, ये वाली कला जब क्रू में आ जाती है तो क्रू की बॉन्डिंग चलती रहती है और रेस आखिरी तक हम लोग फिनिश करते हैं. सो दीज आर फ्यू क्वालिटीज जो हमने फर्स्ट टाइम लिस्ट डाउन करी. इस बार का जो क्रू सिलेक्शन था दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर सम मोर प्रोफेशनल क्रू मेंबर्स. So I had a tough task at hand. Zamran was busy with some activity. So मेरे ऊपर एक अजीब सी जिम्मेदारी आ गई कि मुझे क्रू सिलेक्ट करना है और क्रू बाहर के मेंबर्स थे, भोपाल के नहीं थे. So I got few CVs, कुछ फोन कॉल आ गए. मैं अचानक से चार्टर्ड अकाउंटेंट से HR मैनेजर बन गया. मैं लोगों को फोन करता था, उनके इंटरव्यूज लेने लगा कि आपको क्रूइंग क्यों करनी है, आपका जीवन में लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, जीवन में समस्या क्या है, आपकी उम्र क्या है, आप क्या करते हैं, परिवार में कितने लोग हैं, गर्लफ्रेंड तो नहीं है, आपकी शादी हुई है नहीं. तो ऐसे ऐसे मैंने सवाल पूछे. मैं अचानक से एक HR मैनेजर बन गया. उसमें हमने कई लोगों को सिलेक्ट किया, कई को रिजेक्ट किया, कुछ ने वो सवाल सुन के हमें रिजेक्ट कर दिया. मतलब ये क्रू में ले जा रहे हैं या हमें परमानेंट मतलब सरकारी नौकरी देना चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं. तो लोगों ने भी हमें रिजेक्ट किया, बट हमें पता था हमें रिजेक्शन झेलना पड़ेगा. आफ्टर ऑल दीज मीटिंग्स, ये जो फोटो में लोग दिख रहे हैं, दीज वर फाइनली आवर क्रू मेंबर्स. और जैसे मैंने आपको बोला राकेश ओम प्रकाश मेहरा की मूवी जैसे, अब हम वापस अल्ट्रा स्पाइस पे आ गए. सो दीज वर आवर क्रू मेंबर्स. इसमें राइट साइड से जो लास्ट और थर्ड लास्ट पर्सन है, दे आर नॉट हियर, दे आर फ्रॉम पुणे. दैट इज वन इज अजिंक्य, अनदर वन इज कौशल. सो फाइनली भोपाल के अलावा 2 लोग हमने बाहर के फाइनल करे. बोथ वर एक्सपर्ट्स, बोथ वर प्रोज इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स. तो हमें लगा हमें इनकी सर्विसेज लेनी चाहिए एंड वी बॉन्डेड वेल, बट ओनली ऑनलाइन. अब ये बॉन्डिंग करने का हमारे पास टाइम लिमिटेड था, सो वी डिस्ट्रीब्यूटेड सम स्टडी मटेरियल. मैं खराब टीचर जैसे पूछता था होमवर्क किया नहीं किया. हम लोग गूगल मीट पे मीटिंग शेड्यूल करते थे. कुछ लोग आ पाते थे, कुछ नहीं आ पाते थे. फिर मैं उनको डांट लगाता था, क्यों नहीं आए, पढ़ाई क्यों नहीं करी, रूल बुक क्यों नहीं पढ़ी. तो ये सब करते 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 बहुत सारी फिजिकल इंडियन कॉफी हाउस में मीटिंग करी, थोड़ी गूगल मीट पे करी. करते करते फाइनली वी गॉट अ क्रू जिसमें यहाँ पे 6 लोग थे. अच्छा, ये 6 लोग तो इनको सब आता था. They were good at driving also, they were good at physiotherapy, they were good at food, they were good at nutrition. Most importantly, most of them were good at entertainment. जो अल्टीमेटली हमने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन कवर किया, क्योंकि अगर आपको 4 दिन तक साइकिल चलानी है, so you need entertainment. हम सब लोग अब Netflix टीवी यूज करते हैं, तो एंटरटेनमेंट के बिना आप नहीं चला सकते. इवन दो इट्स अ सीरियस रेस, बट वो सीरियसनेस में भी एक एंटरटेनमेंट होनी जरूरी है. थैंकफुली ऑल आवर क्रू मेंबर्स वर ग्रेट एंटरटेनर्स. तो ये वाला लेकिन हमने क्लॉज यहाँ पे कवर नहीं करा. अब थोड़ा बहुत क्रू के बारे में आगे वाइंड अप करते हुए जामरान विल टेक यू फर्दर. नंदन भाई ने बताया कि ये बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है और ये जब हम लोग तैयारी करते हैं और ऑन पेपर वर्क कर रहे होते हैं तो ये बहुत स्ट्रिक्ट है. सही. और जब रेस में पहुंच जाते हैं तो फिर ये लोग मुझे नहीं झेल पाते, जो मैं दिख रहा हूँ और ये दिख रहा है इतने अच्छे अच्छे चेहरे, तो इनको ऐसा लगता है कि कैसे सीख निकल आए ऐसे लोग हैं. जब आप अल्ट्रा साइकिलिंग रेस में जाते हैं तो आप कुछ घंटों के लिए नहीं जाते हैं, आप दिनों के लिए जाते हैं. आपको खुद भी नहीं पता होता कि आप कैसे जीव करने वाले हैं. हमने 10 मिनट्स का टाइम ऑफ सेटल रखा जब हम ग्रेट हिमालयन कर रहे थे या हम डेक्कन क्लिफहैंगर कर रहे थे. वो हमारी 24 to 28 आवर्स में खत्म हो गई, 1 से 1.5 दिन में. जब हम अल्ट्रा स्पाइस के लिए गए तो हमने हमारा ऑफ सेटल टाइम हमने बताया ज़्यादा था, वो हमने खुद करा जानबूझ के. वो इसलिए करा क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि हमारी बॉडी 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद कैसे रिएक्ट करेगी. बॉडी तो छोड़ दो, हम खुद कैसे रिएक्ट करेंगे, मतलब हमारा क्या नेचर हो जाएगा या हमारे क्रू का क्या नेचर हो जाएगा. तो इन सब चीज़ों को मेंटेन करना 3-3, 4-4 दिन तक, तो हम लोगों के बिहेवियर चेंज होते हैं. और मैं क्रू के लिए बोलूँगा कि हमें हर बार बहुत ही अच्छा क्रू मिला. मतलब
वो हमारे लिए क्रू नहीं होते या कोई पर्सन या वो राइडर्स नहीं होते, बल्कि जब हम रेस में होते हैं तो वो भाई होते हैं हमारे। और इसी तरह मैं भी ट्रीट करता हूँ, मानता हूँ मैं गुस्सा करता हूँ, मैं नाराज़ होता हूँ, कई बार चिल्ला देता हूँ, बुरा बोल देता हूँ, मगर मैं दिल से साफ रहता हूँ। रेस खत्म होती है, बात खत्म होती है। रेस तक में हो सकता है कि लड़ाई भी हो जाती है, चिल्ला चोट भी होती है, मगर ये इतने अच्छे बच्चे होते हैं ये सारे क्रू वाले, क्योंकि इन्हें कसमें दिला के लाता हूँ मैं पहले कि जब मेरे साथ ये हमारे साथ जा रहे हो तो हो सकता है कि जितने अच्छे हम यहाँ पे दिखते हैं भोपाल में, वो कभी कभी नहीं भी दिखें। और ये लोग मानते हैं उस बात को, और ये बहुत अच्छे से टॉलरेट करते हैं। ये हंसते हंसते हमारे पूरी गुस्से को पूरा मतलब ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते, जब तो हम परफॉर्म कर पाते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। अगर ये हमें रिएक्ट कर जाएंगे तो हम तो टूट ही जाएंगे, हमसे तो नहीं हो पाएगा। तो ये है हमारी पूरी बैकबोन। उसके बाद रेस इन्वेंटरी एक बड़ा काम है जो आप बताएंगे आप। अगला एक और जो हमारा इम्पोर्टेंट टास्क हो जाता है वो हो जाता है सामान इकट्ठा करना। क्योंकि हम लोग ने जो सीख ली डेक्कन क्लिफहैंगर में, हमारे पास बहुत कम एक्सपीरियंस था। वहाँ पे हम लोगों ने एक्सेल पे कुछ लिस्ट बनाई। ये एक सैंपल एक्सेल लिस्ट है, स्नैपशॉट्स हैं कुछ जो हम लोग काम करते रहते हैं। तो इस प्रकार से सामान इकट्ठा करना होता ही है कि डेक्कन क्लिफहैंगर का जो सामान है वो तो है, फिर हिमालयन में हाई एल्टीट्यूड के हिसाब से हमने अलग सामान इकट्ठा करा विच गेट्स एडेड अप इन डेक्कन क्लिफहैंगर। एंड देन उसके बाद ये अल्ट्रा स्पाइस जो थी, ये 4 दिन की रेस थी, उसमें जो वहां था और जो वहां था वो दोनों के अलावा भी हमें काफी सारे सामान की जरूरत पड़ी जो हमने यहाँ पे ऐड करा। सो ये एक जस्ट एग्जांपल है। कुछ इंटरेस्टिंग बातें मैं आपको इससे बताता हूँ। वी ट्राई कि हम एक गूगल डॉक्स पे शीट बना ले, वी ओपन इट फॉर ऑल क्रू मेंबर्स, जिसको जो लगता है उसको सामान की लिस्ट अपनी टाइप करती जाए। वी कैटेगराइज इट, राइडर्स नीड, क्रू नीड्स, व्हीकल नीड्स, स्पेयर्स, कंज्यूमेबल्स, मिसलेनियस फूड, इस तरीके से हम शीट बना लेते हैं। वी कीप इट ओपन फॉर सम टाइम सो दैट एवरीवन कैन ऐड देयर व्यूज। उसके बाद में काम चालू होता है उस सामान को खरीदने का। कुछ चीजें ऑनलाइन मिलती हैं, कुछ ऑफलाइन, कुछ भोपाल के वेंडर से, कुछ भोपाल के बाहर के वेंडर से। वो सामान हम लोग इकट्ठा करते हैं, चेक करते जाते हैं। ये सामान खरीदने के बाद में जो अगली प्रॉब्लम आती है दैट इज अंडरस्टैंडिंग हाउ टू यूटिलाइज दोस थिंग्स। जैसे आपको एग्जांपल दूं, लिस्ट में एक सामान लिखा है दैट इज टॉर्क रेंच, और वेरी इंटरेस्टिंग पीस ऑफ टूल। मुझे पता भी नहीं था डेक्कन क्लिफहैंगर करने से पहले कि टॉर्क रेंच जो टूल होता है वो होता क्या है, करता क्या है। सो सपोज ऐसा कोई टूल मेरे क्रू के सामने या मेरे सामने आ जाता है जिसको मैं पता ही नहीं है उसे यूज कैसे करना है, तो देयर इज नो पॉइंट इन एडिंग वेट इन आवर क्रू कार और उसको लेके जाने का। तो कई बार ऐसा होता है कि हम 2-5% सामान घर पे छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली भी रियलाइज कि ये सामान हमें यूज करना तो आता नहीं है। जज्बाती होके हमने इंटरनेट पे पढ़ के सामान तो खरीद लिया लेकिन हमें यूज करना नहीं आता। सो यहीं पे इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम कोई सामान खरीदते हैं वी ट्राई टू एंश्योर कि बोथ द राइडर्स एंड एटलीस्ट सम ऑफ आवर क्रू मेंबर्स शुड नो हाउ टू यूज दोस थिंग्स। सो टॉर्क रेंच। और अगली एक और बड़ी ट्रिकी बात होती है वो होता है कार में सामान रखना। कार में हमें 2 बार सामान रखना पड़ता है, एक जब हम भोपाल से रेस करने जाते हैं और एक जब हम रेस कर रहे होते हैं। So when we arrange the car, when we go from Bhopal to the racing destination, we arrange the car in a different manner, because वहाँ पे the objective is that goods should reach safely, वो primary objective होता है, and without any चालान, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। आप साइकिल नहीं टांग सकते, आप कैरियर नहीं लगा सकते। वी हैव पेड चालान एवरीवेयर। अभी मेरा कोल्हापुर का 1000 रुपए का चालान पेंडिंग है गाड़ी का। आफ्टर दिस सेशन आई विल पे इट ऑनलाइन। आई कीप रिसीविंग मैसेजेस, वो 1000 रुपए अभी पेंडिंग है। सो हम लोग पे चालान कटते रहते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आरटीओ अपलोड करता रहता है, हम लोग टाइम पे जब फ्री होते हैं उस चालान को पे करते रहते हैं। तो कार में सामान भर के ले जाना भी एक टास्क होता है। हम लोग डायग्राम्स बनाते हैं कौन सी चीज कार में कहाँ रखी जाए ताकि सामान पूरा कार में आ जाए, और आना कार में ही है। अगर कार में सामान नहीं आया तो आप कोरियर से भेजोगे, दैट विल नॉट बी कॉस्ट इफेक्टिव। तो बहुत सारी चीजें वहां पे सोचनी पड़ती हैं। इसके बाद में जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कुछ विचित्र सी चीजों का। सो आपको राइट साइड में जो बॉटल दिख रही है कि कैन जैसा दिख रहा है, हंस लिखा हुआ, आई केम टू नो अबाउट दिस स्टफ व्हेन वी वर इन ले। जो हिमालयन अल्ट्रा के लिए गए थे, सो वी वर स्ट्रोलिंग एंड आवर क्रू मेंबर हियर शी टोल्ड मी भैया एक काम करते हैं ये खरीद लेते हैं, दिस इज अ ब्यूटेन टैंक। सो मैंने उससे पूछा इस ब्यूटेन टैंक का क्या करेंगे, उसने बोला अपन इससे खाना बनाएंगे। तो ये तो हमारे प्लान में था नहीं जब हम भोपाल से गए थे, बट देन ही एक्सप्लेन्ड मी इससे खाना कैसे बनता है। सो वी बॉट दिस एंड वी रेंटेड अ फ्यू यूटेंसिल्स एंड इट हेल्प्ड अस अ लॉट। हमने रेस में ग्रेट हिमालयन अल्ट्रा में एक्सेप्ट फॉर वन डिनर हमने एक भी जगह बाजार से खाना नहीं खरीदा, सब कुछ हमने खुद कुक करा। सो आवर क्रू इज आल्सो गुड एट कुकिंग
ये एक नई स्किल हमें पता चली। तो इस ब्यूटेन पंप के ऊपर हम लोग एक जाली लगा के, बर्तन लगा के, पानी गर्म करके उपमा, पोहा, मैगी, सूप, चाय, कॉफी सब कुछ बना लेते हैं, कहीं भी चलते चलते 5 मिनट का स्टॉप लेते हैं और बना लेते हैं। तो दिस वाज वन इंटरेस्टिंग पीस, वन इंटरेस्टिंग एडिशन टू द एंटायर टैली ऑफ सामान। अगली चीज आप देखेंगे, 2 कार्स हैं, वो किस तरीके से रैक्ड अप रहती हैं हमेशा। साइकिल्स टंगी हुई हैं, स्पेयर बाइक है, वो जो ऑरेंज बाइक दिख रही है वो प्रिया मैम की है। मैम थैंक यू, मैम ने हमें बाइक दी थी ले जाने के लिए एज अ स्पेयर बाइक। और वही फोटो में यहाँ पे दिख रही है। नेक्स्ट जो अल्ट्रा स्पाइस को जो बहुत बड़ी लर्निंग हो, जिसके बारे में आगे कुछ और फोटोग्राफ्स आएंगी, इज दिस पिक्चर। दिस इज अ टेंट, 20 सेकंड और 10 सेकंड टेंट। इस टेंट को सेटअप करने में आपको 20 सेकंड लगते हैं अगर आपको सेटअप करना आता है तो, और इस टेंट को बंद करने में आपको एक जीवन काल लग सकता है अगर आपको इसको बंद करना नहीं आता। तो ये जो फोटोग्राफ है ये गोवा के होटल के रूम के अंदर है। यश हमारे क्रू को ट्रेनिंग दे रहा था कि टेंट बंद कैसे करते हैं। सो बार बार हम टेंट खोलते थे, फिर बारी बारी सब क्रू मेंबर उस टेंट को बंद करना सीख रहे थे। तो ये वो वाला मोमेंट कैप्चर किया है। और टेंट से रिलेटेड बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अभी आगे भी आने वाली हैं, बट दिस वाज वन very interesting addition to our arsenal of goods and tools is what that was a tent, and that is how we arrange things. ये जो एक आपको फोटो दिख रही है, एक क्या ड्रोन व्यू जो दिख रहा है, खाने पीने का सामान पूरा क्रू मेंबर बैठ के अरेंज कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एवरीवन शुड नो कि हमारे सामान में क्या क्या है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वन मेंबर में फॉल सिक, अनदर मेंबर में फेस सम काइंड ऑफ इशू। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबको पता होना चाहिए कौन सी चीज किस बॉक्स में क्या रखा है। सो वी ट्राई टू कंपार्टमेंटलाइज, अलग अलग टाइप का सामान लिस्टेड रहता है, पेस्टेड होता है, उसका इंडेक्स बना हुआ होता है। ये खाने पीने का सामान को आपको सैंपल दिख रहा है। सो वी हैव 2 कलर कोडिंग, ब्लू कलर इज माइन, रेड इज जामरान। तो ब्लू कलर की टोकरी में जो सामान है वो मेरा होता है, छोटी टोकरी में रेड इसका। फिर उसमें सप्लाई करने के लिए वी हैव अ बिगर ब्लू बास्केट एंड अ बिगर रेड बास्केट। When that basket empties out, बड़ी बास्केट से उसमें सामान आता है, and when that बड़ी बास्केट empties out, we have ice box and cartons, तो हम उसको रिफिल करते हैं। So ऐसे हम 3 टियर में अपने फूड को मैनेज करते हैं, जो हमारी सपोर्ट कार और कार की डिक्की से राइडर के पास तक पहुंचता है। और ये सब कुछ एक्चुअली हमारा क्रू करता है, क्योंकि हम बड़े राजा बन के बोल देते हैं मुझे एक नारियल पानी चाहिए, या मुझे एक स्निकर चाहिए, या मुझे एक पराठा चाहिए, जो भी खाना है। तो मेहनत जो है पूरी वो यहाँ पे क्रू ही करता है। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्रू इन सारी की सारी चीजों को समझे। अब हम लोग जामरान और मैं बारी बारी आपको लेके जाएंगे एक्चुअल रेस मोमेंट्स के ऊपर। सो वी हैव रीच्ड गोवा। 48 आवर्स बच्चे रेस स्टार्ट होने पे, वो 48 आवर्स पहले क्या क्या हो रहा था वो अब जामरान आपको बताने वाला है। हम लोगों का बाइक चेक था, तो गोवा हम लोग अलग अलग तरह से पहुंचे। सब कुछ फ्लाइट से पहुंचे, कुछ ये गाड़ी से गए, कोई ट्रेन से गया, कोई बस से आया। पुणे वाले दोनों बंदे बस से आए। तो सब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते हुए टीम बनने के लिए सब अलग अलग तरह से पहुंच गए एक जगह पे। वहाँ पहुंचे और हमारा सामान इन्वेंट्री जो है हमारी कार के थ्रू, जैसे इन्होंने बताया कि कैसे उसको कुछ टास्क के अरेंज करके और उसके ऊपर चढ़ के बैठ बाट के उड़ा। तो वहाँ पहुँचे, रास्ते में इन्होंने चालन दिए, सब दिया, टोल करा, जो भी पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है जब हम पहुँच जाते हैं तो अपनी बाइक्स का देखना कि बाइक सब ठीक ठाक आई हैं, क्योंकि कुछ कार से आ रही है, कुछ फ्लाइट से, अलग अलग मोड से बाइक्स भी। 2 बाइक्स कार से गई, 1 बाइक फ्लाइट से गई। तो सब चेक करना होता है सबसे पहले, क्योंकि रेस में से 48 आवर्स बचे होते हैं। और हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, तीनों रेस में बहुत अच्छी रही। जब हम लोग डेकन क्लिफहैंगर में गए तो रेस से कुछ घंटे पहले इनका ब्रेक फेल हो गया। अब वो जाइंट का ब्रेक ढूंढते पूरा टीम हमारी लग गई उस काम पे। और सब एक तरफ, नंदन भाई ने बोल दिया भाई मैं टेंशन तो नहीं ले सकता, मैं तो जा रहा हूँ, एक तरफ बैठा हूँ। और तो मैं बोल रहा था कि हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमारा ब्रेक फेल हो गया, और फिर हम लोग लग जाते हैं मेहनत में और फिर उसको सुधारते हैं और रेस कर लेते हैं। हम जब ग्रेट हिमालयन में पहुंचे तो भी हमारी किस्मत अच्छी थी। रेस से कुछ 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले साइकिल की चेन टूट गई। नहीं पता कैसे टूटी, ऐसे ट्विस्ट हुई कि जैसे बहुत ही बुरी तरीके से टूटी हो। हालांकि हम लोगों ने राइड करी सुबह, पर शाम में वो टूटी मिली।
तो इस तरह के इंसिडेंट होते हैं, ये भी हमारी अच्छी किस्मत थी, हमने उसे सुधारा था। जब अब हम पहुंचे अल्ट्रा स्पाइस में तो सिर्फ कुछ घंटे बचे थे रेस बाइक चेक होने के लिए, तो रेस में टाइम था बट बाइक चेक के लिए कुछ घंटे बचे थे। तो मेरी जो बाइक थी वो पहुंची थी फ्लाइट से और उसमें थोड़ा मिस हैंडलिंग हुआ, तो उसकी वजह से उसका एक छोटा सा पार्ट होता है, ये जो आपको दिख रहा है बिल्कुल छोटा सा, ये शायद 2 इंच का पार्ट होता है, जैसे हैंगर बोलते हैं, आरडी हैंगर, ये टूट गया। और ये एक ऐसा पार्ट होता है कि जब हम स्पेयर इकट्ठा करते हैं, आपने अभी देखा यहाँ पे इन्वेंटरी में कि हम क्या क्या ले जा रहे हैं, तो उसमें स्पेयर पार्ट्स होते हैं, ट्यूब है, टायर है, चेन है, एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब मैं भोपाल में था तो मेरे को ये भी एक रखना था पार्ट, तो मैंने ढूंढा तो मुझे कहीं नहीं मिला, तो मैंने कहा ये नहीं मिल रहा, तो इसको छोड़ के जाते और वही टूट गया, वो रेस में पहुँचने से पहले टूट गया। अब दिल तो टूट गया साथ में कि अब क्या होगा, अब तो रेस करना तो है कैसे भी, तो एक स्पेयर बाइक थी, बहुत कंफर्टेबल नहीं थी, बाइक फिट नहीं थी, उसको ट्राई करें कि चलो उसको चलाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। 2-3 घंटे चला ही पता चल गया कि नहीं सेट नहीं हो रहा, नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया कि हमारी किस्मत अच्छी थी, तो हम लोगों की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ये प्रॉब्लम आ गई। तो मैं ये आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जब हमारे साथ प्रॉब्लम आती है तो हमारी किस्मत अच्छी थी, हमें किस्मत अच्छी थी इसलिए आती है। आप लोग सोचो कैसे बेवकूफ़ है, ख़राब होती है तो बोल रहे हैं किस्मत अच्छी है, इसलिए अच्छी होती है कि जब हमारी प्रॉब्लम आती है तो हमारी पूरी टीम एक साथ मिल जाती है और उसको सॉल्व करती है। तो सब मिलके फिर उसके पीछे पड़ जाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तब दिखता है कि टीम वर्क क्या होता है। तब वो टीम जो है ना एक्चुअल टीम बनती है जब प्रॉब्लम सामने आती है, और उसके बाद जब वो मिलकर से रिजॉल्व करते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि अब हमारी रेस तो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तो है हमारे पीछे खड़े हो पीछे। पूरे इंडिया में एक एक जगह सबने अपने पूरे कॉन्टेक्ट पहुंचा दिए, सबसे जो भोपाल में है जगदीप भाई थे, अर्चित भाई, और इधर उधर उधर इंडिया में सब जगह। तो पता चल रहा था, जिस भी शॉप पे फोन करते थे कि अच्छा हैंगर चाहिए, वो गोवा में पहुंचाना है क्या, अच्छा वो हैंगर चाहिए जो गोवा में पहुंचाना है क्या, तो सब लगे हुए थे। और उसके बाद फिर वो किस्मत से वहाँ पहुँच गया और मिला और उसको सेट किया गया और फिर रेस कंफर्टेबली हुई। छोटा सा पार्ट 24 आवर्स, 24 आवर्स टू रेस, एक ही दिन बचा था। मेजर इशू जो था वो जामरान की बाइक का आया था, डेट वाज केटर्ड टू। उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बची थी हम लोग की, जैसे बीआरएम में आप लोगों ने देखा प्री रेस ब्रीफिंग होती है, सो देयर वाज अ प्री रेस ब्रीफिंग जिसमें बताया गया सम लास्ट मोमेंट डॉक्यूमेंटेशन व्हिच वाज टू बी डन, सम लास्ट मोमेंट क्रू मीटिंग, ताकि हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी जो रेस प्लान है, नेविगेशन, सब चीजें फाइनल कर सकें और जो जो हम लोग को टारगेट्स मिले थे उनको हम लोग फाइनल कर सकें। अब हमारी रेस जो है वो एक्चुअली स्टार्ट हो गई है। एक मिनट के अंदर हम लोग आपको 24 घंटे जो है आंखों के सामने तेजी से निकालते जाएंगे, पहले 0 से 24 आवर्स। एक चीज मैं बताऊंगा, आर रेस स्टार्टेड एट 1 PM इन द आफ्टरनून, सो दोपहर 1 बजे रेस स्टार्ट हुई थी। सो 24 आवर्स इंक्लूड्स हाफ डे, 1 नाइट एंड अनदर हाफ डे, सो 1 बजे से लेके 1 बजे तक। 0 to 24 आवर्स और वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि शुरुआत थी, हम लोग पूरी चार्ज से अच्छे से कर रहे थे, रूट भी बहुत अच्छा था, साफ सुथरा था, फ्लाइट था काफ़ी। 24 to 48 आवर्स बिट चैलेंजिंग, रात हो गई थी, रोड खराब थे, रोड बाइक चला रहे थे, बड़े बड़े पत्थर थे, ऑफ रोडिंग जैसे करना पड़ी। उसके बाद हमने कवर किया चिकमंगलुर और कुछ जगहें, और दैन ऊटी का क्लाइंब तक हम पहुँच गए थे अगले 48 आवर्स तक। तो क्लाइंब स्टार्ट किया, 48 आवर्स हमारे निकले। जब हमारे हम जब पहुंचे थे तो वहाँ कुछ थोड़े बहुत घंटे ऊपर थे ऊटी तक, देन वी रियलाइज किया कि आधे से ज़्यादा टाइम हो गया। नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स इज वन ऑफ आवर फेवरेट पार्ट। रीजन बीइंग कि इस दिन रात को अंधेरा होने से पहले बारिश स्टार्ट हो गई थी। कुछ फोटोग्राफ से आपको अंधेरा हो जाएगा। सो मटकेरी एक नाम की जगह कुर्ग में आती है। सो कुर्ग हम लोग ने जैसे ही क्रॉस किया था, बारिश स्टार्ट हो गई। 6 to 8 आवर्स इट केप्ट ऑन रेनिंग। द मोमेंट रेन एंडेड, रोड्स वेंट बैड, क्योंकि हम लोग स्टेट बॉर्डर्स क्रॉस कर रहे थे एंड यूजुअली स्टेट बॉर्डर्स के आसपास रोड खराब होती हैं, तो रोड्स वेंट बैड। जैसी बारिश रुकी, फॉग स्टार्ट हो गया था। सो मैं एक दिन सो के उठा था एक टेंट में, तो चाय के बागान दिखे। अगले दिन मैं सो के उठा सुबह, तो मुझे कॉफी प्लांटेशन दिखे। तो अब हम लोग यहाँ पे आ गए सेकंड नाइट के ऊपर, और हमारा थर्ड डे सुबह का स्टार्ट हो गया जब हमने ऊटी क्लाइंब करना स्टार्ट कर दिया था। Now we are on 48th to 72nd hour. We were climbing Ooty. Ooty was our key control point.
वहां का हार्ड कट ऑफ था। अगर हम वहां टाइम पे नहीं पहुंचते हमारी रेस ऊपर पहाड़ पे ही खत्म हो जाती। सो वी हैड टू रीच देयर। ऊटी का जो क्लाइंब था, स्टार्टिंग में जो हमने ग्राफ देखा था, दैट वेरी स्टीप, दैट इंटेंस क्लाइंब, दैट वाज ऊटी। बट बिलीव मी, इट वाज नॉट दैट इंटेंस। अगर आप भोपाल के आसपास क्लाइंबिंग करते हैं तो आपको नॉर्मल ही फील होगा। सिर्फ वो ग्राफ में ऐसा दिखता है क्योंकि इट्स अबाउट पर्सपेक्टिव। वो जो ग्राफ का जो स्केल है, अगर आप उसको प्रॉपर्ली जूम आउट करेंगे तो वो उतना ज्यादा आपको इंटेंस नहीं दिखेगा। वी वेंट अप, यू टर्न लिया हम लोगों ने, वापस आते टाइम क्रू तो अपनी मेहनत कर ही रहा था। माय बाइक गॉट पंचर्ड, सो यूजुअल क्रू था, सब सामान था, सारा साजो सामान लगा के हम लोगों ने पूरा का पूरा स्कीम चेंज कर ली। This is just a photograph, it was actually a video, it may not work. And वो second night मेरी favorite थी और ये fourth night मेरी favorite है। When we were at the fourth night, we thought that we will not be able to finish the race within the cutoff. हम ऊटी से क्लाइंब जब करके उतर रहे थे, हम बड़े मजे में उतर रहे थे। Suddenly we calculated that we may miss the cutoff. So this became my favorite night क्योंकि we started racing. जैसे ही हम लोगों ने शनिवार संडे क्रॉस किया, चिकमंगलुर आया, चिकमंगलुर से हम सब लोगों ने गियर्स चेंज कर ली। हम लोगों ने गाड़ी में तेज म्यूजिक चालू कर लिया। वी स्टार्टेड टेकिंग लॉन्गर पुल्स। हर राइडर जो था वो लंबा चला रहा था, एक एक 2-2 घंटे के लिए चला रहा था। दूसरा राइडर ज्यादा खाना खा रहा था एंड बोथ ऑफ अस वर ऑन डीकैफ। हम लोगों ने कैफीन इंटेक रोक के रखा था ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने से। सो वी स्टार्टेड कंज्यूमिंग कैफीन सो दैट फोर्थ नाइट को हमें नींद ना आए, मतलब ज्यादा ना आए, और फिफ्थ जो मॉर्निंग है, डे है, वहां पे हम लोग बेटर परफॉर्म कर सकें। सो वी स्टार्टेड कंज्यूमिंग जेल्स ऑन फिफ्थ मॉर्निंग, वी स्टार्टेड कंज्यूमिंग कैफीन। इवन कोका कोला का एक सिप जो था वो हमें ऐसे किक दे रहा था एज इफ हमने कोई इंजेक्शन लगा लिया, कोई नशे की दवाई ले ली। सो दैट वाज द रीजन। और हाईवे था, लास्ट 200 मीटर्स पर किलोमीटर वर वेरी फास्ट। जो ऑर्गेनाइजर्स थे इवन दे वर सरप्राइज्ड कि हम लोग एकदम से इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ रहे हैं। देयर कार वाज कॉन्स्टेंटली फॉलोइंग अस फ्रॉम फोर्थ नाइट टिल द फिनिश लाइन, बट थैंकफुली विद द हेल्प ऑफ क्रू, योर ब्लेसिंग्स, वी क्रॉस द फिनिश लाइन। हमारा फिनिश लाइन पे टाइम रहा था 95 hours 47 minutes, कट ऑफ वाज 97.5 hours। सो ऑलमोस्ट 2 घंटे पहले हम लोग फिनिश लाइन पे पहुंच गए थे। इट वाज नॉट एज गुड एज वी एक्सपेक्टेड। We lost a lot of time on second night जब बारिश हो रही थी, but yes, we somehow managed to safely and healthily finish our ride. अब वहां पे पहुंचने के बाद में जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, जो हमने लास्ट में रखा था, वो हमारी 3 जरूरत थी, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी इज खाना। हमने डोसा भी खाया, इडली भी खाई, बर्गर भी खाया, घर से खाकरा, थेपला, पता नहीं क्या क्या ले गए थे, सब खाया। कपड़े मैंने तो बदले, हर 6-8 घंटे में सॉक्स बदले। आई कैरी 24 पेयर ऑफ सॉक्स। My crew stayed in the same pair of socks for 4 days. So sorry about that. और तीसरा जो था मकान, मकान हमारे ये थे जो आप ये देख रहे हैं कि हम लोग मकान खरीद के यहाँ से लेके गए थे। 20 सेकंड में हम लोग मकान बनाते थे, 1 मिनट में हम लोग मकान को गिरा लेते थे। हम लोग कहीं होटल में नहीं रुके। For 96 hours, no hotel stay. We slept in bus stops, on the road, under the tree, inside the car, in petrol pumps, वो स्टील की दुकान, किराने की दुकान, जहां जगह मिल जाती थी, साफ सुथरी सेफ जगह, जहां जानवर अटैक ना करें, बारिश का पानी नहीं आए, वहां हम लोग टेंट लगा के सोते थे। और लास्ट रात को तो किसी को टेंट लगाने का ही मन नहीं हो रहा था, तो सब ऐसे ही योगा मैट बिछा के सोते रहे। ये सिर्फ 3 रातों की फोटो है। 4th रात को किसी ने कोई टेंट नहीं लगाया, योगा मैट, और एक बार तो बिना योगा मैट के ही सो गए थे क्योंकि उस टाइम पे नींद ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। सो दिस वाज आवर रेस। वी लर्नड अ फ्यू थिंग्स। नंबर 1, वी टेल यू, अभी आपने टेंट की जो फोटो देखी, मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि वो लगाते थे 10 सेकंड में, 1 मिनट में हटा देते थे। बट मैं और नंदन भाई एज अ राइडर 2.5 से 3 घंटे सोए पूरी रेस में। मतलब हम 4 दिन में सिर्फ इतना सोए हैं। टेंट में, कार में मैं बहुत सोया। ये कार में बहुत से मैंने प्रैक्टिस करी हुई थी। मैंने भी कार में आखिरी दिन तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं बेहोश ही हो जाता था कार में जाके, तो वो सोने में काउंट होगा। बाकी टेंट में हम इसलिए नहीं सो पाते थे क्योंकि एक राइडर चलता रहता था। जब चलता है तो वो डिस्टेंस कवर होता है, तो ये बहुत पीछे हो जाते थे। इनको कवर करना है तो 2 घंटे में ये वहाँ पहुँचेंगे, 2 घंटे आगे हैं पीछे, मतलब पूरा टाइम इस पर निकलता था। 1-2 घंटे इनको सोने को मिलते थे, इन लोगों को खुद, टीम, अपने क्रू को भी। सबसे अच्छी बात की जो आप देख रहे हैं इसमें, व्हाट वी अचीव्ड, टीम भोपाल अल्ट्रा अवार्ड, ये सबसे प्रेशियस थिंग है जो हमको मिली। मैंने और नंदन भाई ने ये सोचा नहीं था कि इस अवार्ड के बारे में, कभी नहीं सोचा था, क्योंकि आप नीचे देखिए
ऊपर देखें तो 2021 में हमने डेविल क्लिफहैंगर किया, वो मंथ्स से, वो भले 1.5 साल में होती हैं सारी चीज़ें, बट फिर 22 में हमने ग्रेट हिमालयन एंड देन 2023 में हमने एंट्रेंस प्राइज किया। तो ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड टीम भोपाल अल्ट्रा अवार्ड के नाम से है। टीम भोपाल क्या है? टीम भोपाल वो टीम है जो हमारी टीम है, इससे पहले ये अवार्ड था ही नहीं। ये अवार्ड बना जब हमने ऐसा परफॉर्म किया, हमारे शहर का नाम इसकी वजह से आज नेशनल और इवन इंटरनेशनल में भी पहचाना जाता है। और इसमें हमने टीम भोपाल ही रखा इसलिए क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे शहर का नाम हो। हमने उसका XYZ और ट्रिकी सा कोई अच्छा ऐसा कोई नाम नहीं रखा, बट अपने शहर को जब हम पहुंचे थे वहाँ पे डेक्कन क्लिफहैंगर में लाइव है, उनको भी पता है, वो भी देख सकते हैं, बट सबको पता था कि भोपाल कौन सी शहर नहीं जानते थे सब। बट अभी टीम भोपाल के नाम से एक अवार्ड है, अब कोई भी ऐसा परफॉर्म करता है तो उसको ये अवार्ड मिलेगा। और ये अवार्ड उनको मिलता है जो तीनों रेसेस को फिनिश करते हैं कोई भी टीम कट ऑफ के अंदर अच्छे से, तो उसको टीम भोपाल अल्ट्रा अवार्ड मिलता है। ये हमारी सबसे बड़ी जीत थी। और इस जीत से ज़्यादा बड़ी जीत जो हम लोगों ने सीखा, जैसे जामान ने बताया व्हाट वी अचीव, बट व्हाट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है द जर्नी, हाउ वी अचीव। सो वी ट्राई टू फोकस ऑन अ फ्यू थिंग्स एज सिंपल एज देयर इज नो शॉर्टकट। आप सुबह सो के उठेंगे, कुछ नया हो जाएगा, कुछ बड़ा होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। यू विल हैव टू इन्वेस्ट नॉट जस्ट टाइम, मनी ऑल्सो एंड एफर्ट्स ऑल्सो। बिना उसके आप अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। प्लस वी ट्राई टू स्टे इन बेस्ट डिसिप्लिन, स्टे इन बेस्ट फॉर्म ऑफ कंसिस्टेंसी। कोशिश करते थे कि हमारा जो ऐप है ट्रेनिंग पीक्स, वो ग्रीन नहीं तो कम से कम रेड ना हो, ग्रीन और ऑरेंज का मिक्सचर है। कोशिश करी कि हम लोग कंसिस्टेंट रहें और जो हम लोग अपने गोल्स बनाए वो रियलिस्टिक रहें। ऐसा कुछ हम लोग ना करें जो हम लोग अचीव ना कर सकें। एंड सिंपल, इट वुड हैव नॉट बीन पॉसिबल विदाउट मेंबर्स ऑफ आवर टीम। और मेरा और जामरान का पर्सनल अचीवमेंट रहा, हम दोनों ने अपने आप को बेहतर समझा। मैं बोलूंगा ये उस अल्ट्रा अवार्ड से ज्यादा बड़ा अचीवमेंट था। जब आपको कोई टफ सिचुएशन में डाला जाता है, जब आपको कुछ करना होता है जो आपने पहले कभी नहीं किया, यू लर्न अबाउट योरसेल्फ। आप अपना स्वॉट एनालिसिस करते हो, यू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, where are the opportunities and what are the threats which you may have to face। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारा खुद का स्वॉट एनालिसिस। ये फोटो हमने स्पेशली सिलेक्ट करी, एक में हम थके हारे पड़े हुए हैं आफ्टर 3 reps ऑफ झोलियापुर ड्यूरिंग वन ऑफ आवर ट्रेनिंग राइड, जब हम बारिशों में कर रहे थे। इट वाज अ ह्यूमिड डे एंड दिस इज बोथ ऑफ अस वॉकिंग अ बिट कॉन्फिडेंट जस्ट बिफोर ग्रेट हिमालयन अल्ट्रा, बिलीविंग दैट वी हैव ट्रेन्ड वेल, वी मे परफॉर्म वेल। सो ये इसका रैशनल है बिहाइंड these 2 photographs, and thank you so much for such a patience. Your wonderful and thrilling journey. I would like to call upon Dr. Brijen Mishra sir to facilitate both of them. Yes sir. आश्चर्य होता है, भोपाल जैसे आलसी शहर में ऐसे लोग नहीं हैं। क्योंकि मैं इतना कुछ तो नहीं करता, लेकिन 7-8 किलोमीटर डेली वाके 10 किलोमीटर साइकिल वगैरह करता रहता हूँ। लेकिन मैं सोचता हूँ भोपाल के लोग यदि थोड़ा भी कॉन्शियस होते और 1% लोग भी सुबह घूमने के लिए तैयार होते तो शायद शहरों सड़कों पे काफ़ी भीड़ होती। तो आलसी शहर से इतने अच्छे लोग निकलना, मैं आपको इस चीज़ की बधाई देता हूँ। और सबसे बड़ा निर्णय जो इन लोगों ने लिया किसी एक दिन, वो था कि हमें ये करना है, इच्छा शक्ति। और ये इच्छा शक्ति का निर्णय होता है, कल से करने वाले लोग बहुत मिलते हैं, कल से करेंगे, आज करना है, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और मुझे लगता है कि आप जो ये प्लेटफॉर्म यहाँ है ये बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे मैं डाउन द हिल आदमी हूँ, अब मैं सब सोच भी नहीं सकता, लेकिन आपको ये सब प्रोग्राम स्कूल्स में करना चाहिए, 8वीं के लेवल पर या 7वीं के लेवल पर। यदि वहाँ से आप प्रमोट करेंगे तो एथलेटिज्म और मेहनत, और कई बार क्या होता है कि जर्नी इटसेल्फ इज अवार्ड एंड रिवॉर्ड। कोई आपको अप्रिशिएट करे या न करे, आपने जो गोल सेट किया है वो गोल अचीव किया है, दैट इज अच्छा। एक जो क्वेश्चन मेरे मन में आता है
Who funds all this? So self-funded. Self-funded. We are looking for sponsorship. No, really, it is easy to listen, but it is very difficult to arrange and organize. मैं आपको उसके लिए बधाई देता हूँ. I would like to call upon, sorry, I just, Nandan and Zama. Nandan ji and Zama ji. कौन किसको दे रहा है पता नहीं. I would like to call upon Jasdev ji, Mr. Jasdev ji to facilitate a meeting. I'll request ma'am to come around. Yes. सर फोटो ले लेते हैं साथ में। मैम की साइकिल हर बार साथ में गई है तो मैम को बैठे ज्यादा बनता है। सही बात। हाथ ही लगा देते हैं। I would like to call upon Muskan Raghuvanshi ji. She is also one of the athletes and she is a wonder girl of Ashok Nagar. Narmada Parikrama by cycle, Srinagar to Kanyakumari by cycle, super runner, title winner, and the journey is still continuing. उसका नाम थोड़ा सा बताओ मुझे। थैंक यू सो मच एवरीवन क्योंकि आप लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया। बेसिकली मैं भोपाल से नहीं हूँ और अशोक नगर से ब्लॉग करती हूँ। उसके बाद आप सभी ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, सो थैंक यू। मेरी जो ऑफिशियली जर्नी स्टार्ट हुई थी वो 14 फरवरी 2021 को स्टार्ट हुई थी, जिससे मैं फर्स्ट टाइम जसदेव सर से मुझे कांटेक्ट मिला हुआ था और मैंने सर से बात करी और बात करने के बाद हर एक चीज़ जसदेव सर ने मुझे अरेंज की, साइकिल भी मुझे अरेंज की। मैं जब आई हुई थी मेरे पास कोई साइकिलिंग नहीं थी, मेरे पास साइकिल भी नहीं थी इवन, और साइकिल मुझे सर ने अरेंज की। देन 200 ऐसे 300 400 मैंने जो राइड की हुई है, SR कंप्लीट किया है, उसमें इवन मेरे पास मेरी खुद की साइकिल नहीं थी। जो साइकिल मुझे मिलती थी उस साइकिल से मैंने SR कंप्लीट किया और इवन मुझे SR का मतलब भी नहीं पता था। और मैं जहाँ से ब्लॉग करती हूँ वहाँ लोग बाग साइकिलिंग नहीं करते हैं, तो SR सभी ने बताया कि SR मतलब SR में 200 300 400 6 किलोमीटर की राइड आती है, ये आपको कंप्लीट करना रहेगा और ये 1 कैलेंडर ईयर में करना रहता है। सो मैंने वो कंप्लीट किया। 150 एंड 200 भोपाल से किया एंड 300 400 600 ग्वालियर जाके सिंगल फीमेल राइडर थी उसमें, वो वहाँ से किया। उसके बाद K2K का जुनून माइंड में था पर प्रैक्टिस नहीं पता था कि कैसे करना है और कहाँ रह के करना है। तो मुझे प्रैक्टिस राइड के लिए मैंने नर्मदा परिक्रमा का पता चला कि ये एक नदी रहती है जिसकी परिक्रमा की जाती है और मध्य प्रदेश के लिए जीवन दायिनी रहती है। तो मैंने माँ नर्मदा के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ था, मुझे बुक मिली, मैंने उसको पढ़ा। पूरा पढ़ने के बाद मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें आया। देन मुझे लगा कि मुझे निकलना चाहिए। और इस राइड के दौरान जैसे मैंने यहाँ भोपाल में रह के प्रैक्टिस की, होपफुली मुझे हर एक साइकिलिस्ट ने काफ़ी सपोर्ट किया। मतलब मुझे शूज़ कौन से लेना है मुझे ये भी नहीं पता है, इवन शॉर्ट्स कौन से लेना है, जर्सी कहाँ से लेना है,
साइकिल कौन सी यूज़ करना, उसकी सीट क्या, किस टाइप में मैनेज करना है, मुझे इवन कुछ भी नहीं पता था। मैं स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं थी। यहाँ रहते हर एक साइकिलिस्ट ने मुझे हर एक चीज़ के लिए हेल्प की। तो मैंने साइकिलिंग की जर्नी स्टार्ट की, नर्मदा परिक्रमा स्टार्ट किया मैंने, और जो कि 3200 किलोमीटर का था, और उसको मैंने 90 डेज में कवर किया। मेरे पास कोई स्पॉन्सर्स नहीं थे, इवन मेरी फैमिली रेडी नहीं थी स्टार्टिंग में। उसके बाद जब मैं अपने घर से निकली, कंटिन्यू करते गई, तो माँ नर्मदा को काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। तो उस हिसाब से मुझे एक लड़की थी, माँ नर्मदा एक लड़की थी, उनको परिक्रमा करना बहुत बड़ी बात होती है, और कोई लड़की कर रही है, उधर के जो लोग थे उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। तो उन लोगों ने मुझे उस तरीके से सपोर्ट किया, एक बच्ची आ रही है, परिक्रमा कर रही है, उस हिसाब से वो धार्मिक यात्रा थी, और ऐसे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। पर इस यात्रा के दौरान मेरे साथ काफ़ी मैजिक हुए, वो मैं कुछ शेयर करना चाहूँगी कि इस यात्रा के दौरान मेरे पास 2 साइकिल थी। साइकिल पर जो साइकिल मैं यूज़ कर रही थी वो इवन पंचर नहीं हुई है, उसको मैंने उसमें हवा भी नहीं डाली, उसकी सर्विस नहीं करवाई थी जब मैंने माँ नर्मदा की परिक्रमा की हुई थी। वो सिंगर एक भी बार पंचर कहीं से उसने मुझे परेशान नहीं किया। पर होपफुली किसी ने मुझे ये भी बोला कि आपकी परीक्षा ली जाएगी। तो मेरी कंडीशन थी कि मेरे घुटने से बिल्कुल वर्क नहीं कर रहे थे, एक, फिर दूसरा मैं कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। देन डॉक्टर्स ने मुझे टैबलेट्स वगैरह दी, मैं वो ली, पर कुछ भी नहीं हो रहा था। मैं कॉल करती हूँ, फिर कुछ भगवान साहब को मैंने कॉल किया, सर कहते हैं नहीं क्या लेना, उसको करके करो। मैंने सर नहीं हो रहा है। मैं सोचने लगी शायद मुझे गिव अप कर देना चाहिए, पर फिर मुझे लगा कि यार लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो गिव अप नहीं कर सकते हैं। तो मैं जर्नी कंटिन्यू करी। मैंने 28 से पूरा 40 किलोमीटर राइड किया नर्मदा परिक्रमा में। फिर मैं उसको और कंटिन्यू करते गई, फिर एट लास्ट वो कंप्लीट हुई, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब K2K का जो माइंड में था, काफ़ी लंबा सफ़र है, ये धार्मिक यात्रा थी, तो लोगों ने सपोर्ट किया, ये मेरे माइंड में था। पर जैसे इसके लिए मैं 6 महीने से भोपाल में थी, और भोपाल में सभी ने सपोर्ट किया मुझे कि कैसे क्या क्या सामान सबने मुझे बताया यहाँ से ले सकते हैं, लाके भी दिया, और काफ़ी गिफ्ट्स भी मुझे भोपाल से मिली। सभी ने गिफ्ट किया कि कुछ ना कुछ चीज़ मुझे साइकिलिंग के जो यूज़ होते हैं वो सारी चीज़ें मुझे गिफ्ट की गई। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी उस चीज़ को लेके कि लोग मुझे इतना सपोर्ट करें कि जिस तरह से मैं बिलोंग नहीं कर रही हूँ, उसके बाद भी सब मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। देन मैं स्पॉन्सर्स के लिए ढूंढती रही कि स्पॉन्सर्स कहीं ना कहीं मुझे मिलेंगे, पर मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं मिला उस टाइम। फिर मुझे छोटे छोटे स्पॉन्सर्स मिले, किसी जैसे साइकिल वर्ल्ड वालों ने भी मुझे स्पॉन्सर्स किया कि हम साइकिल का सामान देंगे, किसी ने मुझे कपड़े स्पॉन्सर्स किए। तो ऑलमोस्ट मुझे 30-40 ऐसे करके छोटे छोटे से 5-6 स्पॉन्सर्स मुझे मिले। इसके बाद मैं अपने घर गई, मेरे पास साइकिल नहीं थी। इवन कश्मीर से कन्याकुमारी की मैंने राइड की थी, मेरे पास मेरी साइकिल नहीं थी। जो उस नर्मदा परिक्रमा में मैंने अपनी सेकेंड हैंड साइकिल एक बाय की थी, उससे नर्मदा परिक्रमा की, और ये साइकिल मैंने अपने कोच, जो जिम कोच है, उनकी साइकिल ही रखी थी। मुझे लगा ये साइकिल काफ़ी अच्छी है, तो मुझे एक एक्स्ट्रा साइकिल नहीं लेके जाना चाहिए, क्योंकि वो पंचर नहीं हुई थी, तो डेफिनेटली ये भी नहीं होगी, मेरे माइंड में ये था। मैं ये साइकिल लेके चली, जो कि मैंने सिंद्रा CRPF कैंप से स्टार्ट किया था श्रीनगर से, इसलिए परमिशन नहीं मिली थी। एक्चुअली राहुल गांधी जी की जर्नी चलती तो वो कंप्लीट हुई थी, उस टाइम मेरा स्टार्टिंग टाइम था, तो वो परमिशन नहीं मिली थी। सिंद्रा CRPF कैंप से मैंने स्टार्ट किया। वहाँ से स्टार्ट करने के बाद फर्स्ट डे का जो स्टे था वो बिल्कुल अननोन थे मेरे लिए। वो रोड साइड में चल रही थी, वो कोई ब्लड डोनेशन कैंप चलाते हैं, और उनका 5 फेब को कोई कैंप लगना था, तो उन्होंने बोला कि आप हमारे लिए एक वीडियो बना सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं कर सकती हूँ ये सारी चीज़। तो हम एक साइड में रुके, उनके लिए वीडियोस बनाए, और उन्होंने उसके बाद मुझे बोला कि बेटा हमारे कुछ मिलने वाले आपको आगे मिलेंगे जो आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। भैया को नंबर से शेयर किया, क्योंकि जो क्रू मेंबर थे वो सिर्फ मेरे फैमिली मेंबर थे। मेरा भाई था, मेरा छोटा भाई था, मेरे मौसा जी और मेरे बाबा लोग थे। इवन हम में से किसी को नहीं पता था अगर साइकिल कहीं खराब होती है तो उसे सही कैसे करना है। हमारे पास कार थी, ये पता था ये जाके सही करवा सकते, पर हमें पंचर, इवन मुझे पंचर सही करना भी नहीं आता है, कितनी हवा होना चाहिए वो भी नहीं पता था मुझे। तो ये ना, और जो हमें मिले वो एक दसुआ, फर्स्ट स्टे था मेरा, दसुआ गांव था एक हाईवे से, तो वहाँ उन लोगों से नंबर मिला, हम जाके वहाँ स्टे किया। कोई पंजाबी थे, उनसे मिलके काफ़ी अच्छा लगा, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उनके बच्चे वेट कर रहे थे कि एक लड़की आ रही है जो K2K कर रही है, तो उसका सभी वेट कर रहे थे। तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगी कि लोग मेरे लिए वेट कर रहे थे और अप्रिशिएट कर रहे थे हर किसी को कि वो बच्ची आप कर सकते हो। इवन एक क्वेश्चन था कि कर लोगे, तुम्हें देख के नहीं लगता कि तुम कर लोगे। मैंने सर 25 दिनों में 25 दिन में ही कंप्लीट करूँ, ये घर से डिसाइड करके गई थी।
पर इस राइड के दौरान मैं चाहती तो शायद रोड से हाईवे से डायरेक्टली निकल जाती और किसी से नहीं भी मिलती, पर ये राइड जो मेरा मोटिव था वो था वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट को मैं लेके चल रही थी, इसके लिए मुझे लोगों से मिलना भी ज़रूरी था कि आपने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या किया है। तो मैं सभी से मिल रही थी, मुझे मीडिया ने काफ़ी सपोर्ट किया। देन मैं एमपी में जैसे ही एंट्री करती हूँ तो मैं पर डे 2-2 स्कूल कवर किए मैंने, कि स्कूल में जाके बच्चों से बात की कि वो क्या चाहते हैं, कि मुझे प्लेटफॉर्म मिला है और वो लोग क्या चाहते हैं। तो ऐसे मैं पर डे स्कूल्स कवर करती गई। पुलिस जो टीम थी उन्हें सपोर्ट किया क्योंकि मिलने वाले ज़्यादा लोग थे तो मुझे टाइम ज़्यादा लग रहा था। रात में 10-11 भी बज रहे थे, मुझे राइटर तो फॉलो व्हीकल का सपोर्ट मिलता था तो मैं आगे कवर करती थी। कंटिन्यू ऐसे जर्नी चलते गई, पर कहीं ना कहीं मुझे लगने लगा था कि मेरे पास कोई म्यूज़िक नहीं है, कुछ नहीं है, मैं क्या करूँ। साइकिल पे बैठना पूरे दिन 25 दिन तक पॉसिबल नहीं हो रहा था मेरे लिए। काफ़ी ज़्यादा होपलेस होते जा रही थी, सिर्फ लोग भी अननोन मिल रहे पर अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो चीज़ अच्छी लगी तो उनके अप्रिशिएशन के कारण मैं आगे बढ़ते जा रही थी। कहीं ना कहीं लोगों ने मुझे इतना अप्रिशिएट किया कि एक लड़की कश्मीर से कन्याकुमारी कर रही है, तो कहीं कार रोकते थे, अप्रिशिएट करते थे, कभी मुझे गिफ्ट्स भी दिए लोगों ने, कुछ लोगों ने रोक के फोटोज लिए, तो वो चीज़ सारी मुझे अप्रिशिएट कर रही थी क्योंकि मैं इस अप्रिशिएशन से ही साइकिलिंग की जर्नी मैंने स्टार्ट की थी। जो साइकिलिंग की जर्नी में मैं आई हूँ मुझे सिर्फ 2 साल हुए हैं। इससे पहले मैं कोई एथलीट नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई कर रही थी और जसदेव सर के कारण आज मैं यहाँ हूँ, क्योंकि उस दिन फर्स्ट डे वो मुझे सपोर्ट नहीं करते, फर्स्ट डे वो मुझे रजिस्ट्रेशन करना नहीं बताते कि इस चीज़ का रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, क्योंकि मैं अपने घर से नहीं आई थी, मैं इंदौर से डायरेक्ट यहाँ आई हुई थी। मैंने जसदेव सर को भी नहीं देखा था वो कैसे हैं क्या है, उन्हें उस दिन सपोर्ट किया था। सो ये जर्नी ऐसे कंटिन्यू रही और होपफुल 25 डेज में मैंने इसको कंप्लीट किया। पर एक चीज़ और ज़्यादा अच्छी लगी, इसमें लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, पूरा बाहर हर एक स्टेट में मुझे एक फैमिली की तरह प्यार मिला, सपोर्ट मिला। और एट लास्ट 25th को जब मैं कंप्लीट कर रही थी तो उस दिन जो रिसीव करने वाली एक जो जैसे स्वामी विवेकानंद जी हैं जो बाहर जा रहे थे उनको स्पॉन्सर्स किया था, जो महाराज थे, उनकी ग्रैंड डॉटर ने मुझे रिसीव किया था। वो पौंडीचेरी से मेरे लिए आई हुई थी, वो काफ़ी एक्साइटेड थी कि कोई लड़की आ रही है कर रही है, तो पौंडीचेरी से एक दिन पहले आ चुकी थी। उन्हें मुझे रिसीव किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वहाँ पे ट्रांसजेंडर्स थे उन्होंने रिसीव किया, तो मुझे हर जगह जो जर्नी थी उस जर्नी में हर तरीके के लोग मिले। पर नीचे लग रहा था साउथ में शायद लैंग्वेज बैरियर बनेगी मेरे लिए, उधर भी बहुत सपोर्ट मिला, तो होपफुली ये जर्नी मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव लोग थे और जैसे फैमिली है वैसे ही मुझे ये पूरी फैमिली की तरह लगी। तो थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। ये भोपाल मेरे लिए वो जगह है जहाँ से मैंने अपनी साइकिलिंग की जर्नी स्टार्ट की थी और यहाँ बैठा हर एक इंसान वो है जिसने मुझे कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है, अप्रिशिएट किया है। मैं थोड़ा सा डाइवर्ट होती कि मैं ये कर पाऊँगी, इवन 400 किलोमीटर में यश से पूछा कि यार 400 किलोमीटर है कैसे होगा मेरे से, मतलब मुझे बताया कोई दिक्कत नहीं, बस कर सकती है, कोई दिक्कत, मतलब हर तरीके से समझा। सामने सर से पूछा सर ये बाय करना है, सारी चीज़ बाय करना है, शॉर्ट्स लेना है, ये लेना, सर कहाँ से क्या लेना रहेगा, मतलब यहाँ पे सभी लोगों ने मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया, सामान प्रोवाइड करवाया कि कहाँ से क्या चीज़ लेना चाहिए। सो ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और आज मुझे वापस अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने आपके सभी के सामने अपना शेयर कर सकती हूँ कि मैंने क्या किया हुआ है। सो थैंक यू सो मच। बाकी wonderful journey, and now moving forwards we'll move towards the cake cutting, and I would like to call upon Nandan ji, Zamran ji, Muskan ji and Bhagwan Singh ji, who is first MP who is first Mount Everest climber of MP, Praveen ji, Akshar ji, who has done Ironman, and Jasdeep ji, and Dr. Priya Bhabe ma'am, and Dr. Brajen Mishra sir. Please welcome to this. And all the cyclists, please. Actually, I don't know everyone's name, so please welcome. बातें करते हैं। 2016 में मैंने व्हाट्सएप पे एक मैसेज पढ़ा था, मैं इंदौर में थी उस समय। इंदौर में साइकिलिंग कम्युनिटी बहुत एक्टिव है, तो उस मैसेज में उन्होंने लिखा था कि मैं 200 किलोमीटर साइकिलिंग मैंने चलाई और बीच में कुछ मुझे प्रॉब्लम हो गई तो मैंने छोड़ दिया। ऐसा व्यास सर है वहाँ पे, डॉक्टर ही हैं वो,
उन्होंने एक बहुत लंबा अपना अकाउंट लिखा था। मैंने उस अकाउंट को कम से कम 10 बार पढ़ा और मन में हर बार यही सोचा कि पता नहीं कैसे लोग हैं, 200 किलोमीटर साइकिल, कार रहती है घर में, ट्रेन से जा सकते हैं, क्यों करते हैं ये सब। तो एक और छोटी सी कहानी है कि जैसे हाथी रहता है, जब वो छोटा रहता है हाथी का बच्चा, तो उसे एक पतली सी चेन से बांधा जाता है। जब वो हाथी बड़ा भी हो जाता है और बहुत शक्तिशाली हो जाता है, फिर भी वो उसी चेन से बंधा रहता है, क्योंकि उससे दिमाग में रहता है एक ये कि ये चेन मैं तोड़ नहीं सकता। यदि कोई उसको दिखा दे कि ये चेन तोड़ के वो भाग सकता है, तो वो सब कुछ कर सकता है। तो आज का ये प्रेजेंटेशन अस्पताल में रखने का ये मकसद नहीं था कि आप सब भी 600-700 किलोमीटर या कितनी भी साइकिल चलाएं। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सोचते हैं कि ये हम कर ही नहीं सकते, ये जो करते होंगे ये पागल लोग होते होंगे, हम नहीं कर सकते। पर कहीं ना कहीं हम सोचते होंगे कि शायद हम ये कर लें। तो आज का ये जो अकाउंट है, हम सब ने अपनी जर्नी कहीं ना कहीं साथ में शुरू करी है। मेरी जो 150 किलोमीटर की फर्स्ट राइड थी, उसमें जामरान मेरे साथ में था। मैं उसमें अकेली लड़की थी, नई मैंने साइकिल खरीदी थी और उसके पहले सिर्फ 25 किलोमीटर साइकिल चलाई थी। बहुत डरते डरते कि पता नहीं ये साइकिलिस्ट कैसे दिखते हैं, अलग ही दिखते हैं, बातें भी अलग ही तरह की करते हैं, पता नहीं अपने से क्या कुछ अपन ठीक से कर पाएंगे कि नहीं। तो उस पूरी राइड में उसने मुझे समझाया कि मैडम आप गियर एक ही में चला रही है, गियर बदल भी सकते हैं। उसके बाद जब चढ़ाई होती है तो अलग गियर रहता है, नीचे जाते हैं तो अलग गियर लगाते हैं। तो ऐसे ही करते करते 2-3 साल में कुछ थोड़ी बहुत हम साइकिल चला लेते हैं। और आपने देखा कि मुस्कान और मेरी शायद शुरू में एक राइड हमने साथ में करी थी और आज उसने K2K करके दिखा दी। तो हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ जो होता है, जो हम सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते, आज शायद आप सबको प्रूव हो गया होगा कि हम जो चाहे वो सब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। Bhopal Rider Group and I found these guys. मैंने अभी लंदन टू पेरिस साइकिल की है in July and I'm so happy now just to see all you guys cycling ultra, 600 kilometer, 300 K2K. It's amazing to see, as sir said, आलसी भोपाल। तो जो भोपाल 11 बजे उठता है, ये लोग 3:45 बजे व्हाट्सएप पे ग्रुप आ जाते हैं कि आज 3:45 बजे सुबह साइकिल करने निकल रहे हैं। And I think this needs to be, as sir said, it needs to go to the masses. It needs to go to people who are actually going to take up this cycling. और I'm sure everybody would have, जो साइकिलिंग करते हैं उन्हें एक्सपीरियंस किया होगा कि साइकिलिंग is actually meditation. When you are cycling, you are away from everything. वो साइकिल है, आप हो और वो सड़क है और उसके अलावा कुछ भी नहीं, जिंदगी खत्म हो जाती है वहाँ पे। And that is the bliss. If you want to experience that bliss, and I'm so happy कि भोपाल में इतने सारे लोग साइकिल कर रहे हैं। And I invite you guys, if you want to do anything in London, anything in Europe, Zamra has my contact details if you want to do India to London, है ना? But Modi. So there is a huge support in UK as well for cycling, as well as sponsors की अगर हम बात करते हैं तो I'm sure the moment people see that you are coming in media, the media, when any product, if they see कि भास्कर support कर रहा है या राजस्थान पत्रिका support कर रही है या बंसल ग्रुप support कर रहा है, I'm sure you will get sponsors. And thank you. All the best.